जब आपको एटीसी बोलता है स्टैंड बाय, यानी आपको रुकने के लिए बोलता है, तो आप यहाँ पे उसका रीड बैक दोगे, ठीक है। आप उसका रेस्पॉन्स दोगे स्टैंडिंग बाय विक्टर टैंगो सियरा रोमियो जूलियट, ठीक है, कि मैं आपका इंतजार करूंगा। डन। एंड सपोज यू आर ऑन स्टैंड बाय and ATC is making further more delay. If it is taking more than 2 minutes, more than 3 minutes, then pilot can again call ATC and he can say we are on standby. Okay, how? Just I'm giving an example. Suppose we have called Delhi Tower, Victor Tango Sierra Romeo Juliet, and in the response we have received Victor Tango Sierra Romeo Juliet standby. फिर हम उसका जो रिस्पॉन्स रहेगा अपने साइड से उसका रीड बैक देंगे स्टैंडिंग बाय विक्टर टैंगो सियरा रोमियो जूलियट, यानी हम लोग आपका इंतजार करेंगे। देन सपोज फॉर 2 minutes no reply has came from ATC. In that case you are going to call again to the ATC and you will say Delhi Tower Victor Tango Sierra Romeo Juliet, we are on standby, मतलब हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि when you will give us a call, ठीक है। So this is the use of standby. Now Victor Tango Alpha Juliet Delta, do the readability check. Delhi Tower Vector Tango Alpha Juliet Delta on 118 decimal niner 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read? Victor Tango Alpha Juliet Delta Delhi Tower 1 2 3 4 5 3 2 5 4 1, reading you 5. How do you read? Negative. I say again. Vector Tango Delhi Control Vector Tango Alpha Juliet Delta on 118 decimal niner 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read? Victor Tango Alpha Juliet Delta Delhi Tower 1 2 3 4 5 5 3 2 4 1, reading you 5. How do you read? Negative. I say again. Delhi Tower Vector Tango Alpha Juliet Delta on 118 decimal niner 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do we read? 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, reading you 5. वेरी गुड, ठीक है। सो जो अभी कन्वर्सेशन हुआ वहां पे आपने क्या नोटिस किया? लाइक अल्फा जूलियट डेल्टा वाज सेइंग 1 2 3 4 5 and 5 4 3 2 1, but in the read back ATC was making mistake. ATC was not speaking or transmitting the correct number as he received. So जो रिसीवर एंड पे है लाइक अल्फा जूलियट डेल्टा, he was continuously correcting him, ठीक है, continuously correcting him कि I was saying 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, but you are saying 5 3 2 4 1 5 2 3 4 1. So जब जब आपको रीडबैक में करेक्ट पैरामीटर नहीं मिलेगा, यूज द फ्रेज नेगेटिव एंड मेक द ट्रांसमीटर करेक्ट टिल द टाइम ही विल बी ट्रांसमिटिंग करेक्टली, ठीक है। जब तक आपको सही रिस्पॉन्स नहीं आता है तब तक आप उसको करेक्ट कराते रहो, और उसके लिए आप क्या यूज करोगे? नेगेटिव। व्हाई? कि नहीं, आप जो रीडबैक दे रहे हो दैट रीडबैक इज नॉट करेक्ट। तो नो नेगेटिव का तीसरा मीनिंग क्या था? दैट इज नॉट करेक्ट। समझ में आया सबको? Yes, sir. Okay, then go ahead with readability check if you are ready. Mumbai Station Victor Tango Papa Romeo Kilo 1 2 3 decimal niner 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read? Station calling Mumbai control, say again. Mumbai Control Victor I Tango say Papa again. Romeo. Wait. जब जब बोले ना कि से अगेन, तो उसके बाद आपका रेस्पॉन्स रहेगा आई से अगेन में, ठीक है। आई से अगेन मुंबई कंट्रोल विक्टर टैंगो पापा रोमियो किलो, एंड इन द फर्स्ट कॉल यू हैव टोल्ड मुंबई स्टेशन, नो आइदर ग्राउंड टावर अप्रोच और कंट्रोल, नो डायरेक्टली स्टेशन, राइट। चलो गो अहेड। I say again.
Mumbai ground, Victor Tango Papa Romeo Kilo, 123 decimal niner, 12345 54321. How do you read? Victor Tango Papa Romeo Kilo, Mumbai ground, reading you 5. Done. Next station, Sierra Oscar Hotel. Delhi Tower, Victor Tango Sierra Oscar Hotel on 125 decimal niner, 12345 54321. How do you read? Victor Tango Sierra Oscar Hotel, Delhi Tower, 12345 32 not received correctly, reading you 3. Negative. I say again. Delhi Tower, Victor Tango Sierra Oscar Hotel 125 decimal niner, 12345 54321. How do you read? Victor Tango Sierra Oscar Hotel 12345 54321 Delhi Tower, reading you 5. Now अभी देखो यहाँ पे आपने दो फ्रेज साइमल्टेनियसली बोला. एक तो आपने बोला नेगेटिव एंड देन अगेन व्हाट यू टोल्ड, आई से अगेन, राइट. अभी क्या है, नेगेटिव का क्या मीनिंग है? नो. अगला क्या है? दैट इज नॉट करेक्ट. तीसरा नॉट कैपेबल, परमिशन नॉट ग्रांटेड. हाँ. सो अभी क्या है कि मैंने अपने कॉल में बोला तो कि 1 2 3 4 5 एंड नॉट रिसीविंग योर मैसेज, मतलब मैंने आपके मैसेज को नहीं सुना. व्हाई? बिकॉज आई एम रीडिंग यू एट 3. ठीक है. तो आपको वहां पे नेगेटिव नहीं बोलना. यू कैन सिंपली से आई से अगेन. व्हाई? बिकॉज हाँ यू आर ऑन 3. तो आप बस दोबारा से उसको ट्रांसमिट कर दोगे. ओके, क्लियर? ओके, ठीक है. लाइक दिस ओनली वील हैव अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑन सम ऑफ द calls, and by this only we will learn how to speak continuously and how to speak without any hesitation. ठीक है. This will improve our communication. इसलिए मैं बोलता हूँ डेली रीडेबिलिटी चेक कर लिया करो. We are going to learn a lot more than that. ठीक है. चलो, before going ahead, today we will discuss the chart reading techniques, the leftover portion of chart reading techniques, and अगर आपको चार्ट रीडिंग टेक्निक्स में कोई डाउट है देन ऑल्सो यू कैन लेट मी नो कि मुझे यहाँ पे डाउट रह गया था. वट एवर यू हैड एक्सप्लेन्ड यस्टरडे, आई एम हैविंग डाउट ऑन सेम पोर्शन हियर ओनली. तो आप मुझे वो बताओ. आज हम लोग करेंगे क्लियर. लेट मी जस्ट सी व्हाट आर द टॉपिक्स लेफ्ट हियर. टुडे विल हैव अ लुक फॉर द चार्ट रीडिंग टेक्निक. Sir, you are not audible. Was it not audible also or not visible? What was that? बोथ. Both, अच्छा, sir. टोटल ब्लैकआउट. ठीक है. वेट I'll say. Now am I audible? Yes, affirm. ओके. सो आज हम लोग देखेंगे लेक्चर प्लान में एक बार फिर से ब्रीफ करता हूं. आज हम लोग देखेंगे कुछ ग्राउंड रिलेटेड कॉल्स. ठीक है. some of the calls which can be performed on the ground. So today we'll see how to write the calls, and lecture 7 का ये जो टॉपिक है एयर ट्रैफिक सर्किट विल पुश इट टू द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे. सो टुडे इज March 7 and we will complete total 7 lectures. एक टॉपिक जो मिस है लाइक एयर ट्रैफिक सर्किट विल टेक इट ऑन अनदर डे. तो आज हम लोग इतना टॉपिक पढ़ के जाएंगे एंड probably from tomorrow. ठीक है. from tomorrow onwards it may happen कि from 8 to 17 I won't be able to conduct class. ठीक है.
there is almost 10 days of gap with you, ठीक है, because I'm going to home, and if in my home I'll get the time, then from 11 to 13, these 4 days I'll try to conduct the classes if possible, ठीक है, but you can say कि this 10 days will be holidays, but don't be worried. आज जो हम लोग लेक्चर 7 तक पढ़ेंगे, आप लोग इन सारे टॉपिक को रिवाइज करना, ठीक है, एंड whatever the possible scenario is with us, I will share some of the lecture which is important for part 2 point of view, ठीक है, ये मैं आपको 1 to 1 डेली शेयर कर दूंगा ताकि आपका थोड़ा पार्ट 2 का भी सेशन प्रैक्टिस हो जाए, बिकॉज ऑफ होली दिस गैप इज कमिंग, पोस्ट होली फ्रॉम 17th March the session will be continued, ठीक है, so I'll be sorry for this inconvenience but don't be worried, सिलेबस कुछ ज्यादा वास्ट नहीं है, it will be covered very smoothly, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक गैप है? सॉरी टू इंटरप्ट, कहाँ से कहाँ तक? 8 to 17th, ओके ओके, कल से लेके 17 तारीख तक, ओके ठीक है। So I'll share the part 2 lectures of previous recorded session. आप पार्ट 2 के टॉपिक्स इनको आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ के इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर, दोज क्वेश्चन एंड आंसर्स आर बेसिक टॉपिक्स व्हिच इज बीइंग कवर्ड इन कॉलेज टाइम, तो आप उसको पढ़ के प्रैक्टिस करोगे तो उस आप ही का उल्टा हेल्प होगा। डन। सो पार्ट 2 के लेक्चर्स आप ऑफ डेज में, जब क्लासेस ऑफ रहेंगी तब आप पढ़ सकते हो। आफ्टर 17th the classes will be conducted as per lecture plan, and if someone has applied for the modules as well, then I am worried how you are going to have a practice of both, have a preparation of both module as well as RT. Suraj, have you also applied for module 13 this time? Yes sir, yes sir. Okay, to be very honest, I must tell one thing, ठीक है, I must tell one thing, मॉड्यूल इज योर प्रायोरिटी, ठीक है, बहुत फ्रेंकली बोल रहा हूँ। सपोज यू कैन से कि लाइक योर एल्डर ब्रदर इन एविएशन, ठीक है, आई डोंट वांट टू जस्ट मिसकम्युनिकेट एनीथिंग, जस्ट हैव दिस थॉट क्लियर टू यू, मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी आरटी और एनी एडिशनल सर्टिफिकेशन, ठीक है, मॉड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो if you are okay with the preparation, ठीक है, if you are okay with the preparation, रात में 2 घंटा आप बस आरटी पे दो, बाकी सारा दिन मॉड्यूल की प्रैक्टिस करो। एनी हाउ मॉड्यूल आपका 25 मार्च के आसपास आ रहा है ना एग्जाम डेट? 25 से 29 के बीच में। किससे 21 से 25? 25 से 29 के बीच में। अच्छा 25 to 29, ओके। सो आप उस टाइम से लगभग आपको 20 मार्च तक ये पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम डेट कब है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम डेट में 15 दिन का भी टाइम रहेगा ना, आई विल गिव यू द हिंट कि अभी से क्लासेस आरटी पे थोड़ा कम ध्यान दो, मॉड्यूल्स का क्वेश्चन ज्यादा रटो, ठीक है। आई विल गिव यू द हिंट बिकॉज मॉड्यूल इज इम्पोर्टेंट, आई कैन नॉट बेट ऑन द मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स के बिना तो एविएशन में प्रायोरिटी कम ही हो जाती है। आरटी का क्या है? नो एक्स्ट्रा बेनिफिट, एज आई एम सेइंग, आरटी का कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट नहीं है इन द फील्ड राइट नाउ, ठीक है। दैट इज नेसेसरी फॉर योर लाइसेंस, बट स्टार्टिंग में तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो मॉड्यूल को आप लोग प्रायोरिटी पे प्रैक्टिस करना। आरटी का क्लासेस हुआ नहीं हुआ थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई हैव ऑल्सो स्पेंड एएमई स्टूडेंट लाइफ वेरी रिसेंट, नॉट टू ओल्ड, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ तो मुझे मॉड्यूल्स के इंपॉर्टेंस पता नहीं होंगे। लाइक 2 years ago only I was also giving the module examination like you only, so I can understand the importance of your module papers. आप लोग पहले उधर फोकस करना, ठीक है। तो अभी जो गैप रहेगा ना, आई थिंक 8 से 17 में कंप्लीटली गैप दे ही देता हूँ। आप लोग मॉड्यूल्स के सिलेबस पढ़ लो, 20 मार्च तक में आपको आरटी के एग्जाम डेट पता चल जाएंगे। अगर आपके आरटी के एग्जाम डेट 10 अप्रैल के बाद आए, ठीक है, 12 अप्रैल के बाद आए, तो मैं आपको ऐसा हिंट दे दूंगा कि आधा घंटा आरटी पढ़ेंगे एज पर आवर प्लान, मॉड्यूल आप लोग रट के वापस आ जाओ, ठीक है। एंड
Alpha Juliet Delta. What about your module paper status? Whether all the cleared or कुछ बचा हुआ है? Alpha Juliet Delta. आपके मॉड्यूल का क्या यस स्टेटस सर, है? आई एम ऑडिबल। हाँ हाँ, यस आपके मॉड्यूल का क्या सर, इस स्टेटस है? बार नहीं सर, इस बार मैं मॉड्यूल अपीयरिंग नहीं कर रहा हूँ। Why? Why? क्या प्रॉब्लम आ गई? मॉड्यूल आरटी पे सर ध्यान दे दिया था, फिर आरटी का सोच रहा था, आरटी के लिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्फा जूलियट डेल्टा एंड सियरा ऑस्कर होटल, ठीक है। आप लोगों को तो पेपर यस से अभी कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो आप लोग आरटी के लिए मेरे से कंसल्ट करना। आई कैन कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस बिकॉज मेरे को तो एग्जाम नहीं देना है, बट दोज स्टूडेंट्स हैज टू गो फॉर द एग्जामिनेशन, उनके लिए मॉड्यूल पेपर प्रायोरिटी है। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर उठाओ, रटना शुरू करो। इफ यू हैव अप्लाइड फॉर मॉड्यूल 13, ये ऐसा मॉड्यूल 13 के बुक से पढ़ना, बट क्वेश्चन रटना शुरू करो फ्रॉम डे फर्स्ट, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चन रटोगे उतना ज्यादा टिक मार के आओगे। बाकी पढ़ने लिखने का क्या है, फील्ड में तो पढ़ ही लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन रटना प्रायोरिटी पे। चलो, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक ऑन चार्ट रीडिंग टेक्निक्स, ठीक है। चार्ट रीडिंग टेक्निक्स में कल हमने देखा कि व्हेन टू कॉल अप्रोच, व्हेन टू कॉल टावर, राइट, एंड what are the meaning of different kind of symbols available on the chart, ठीक है। then who is going to let me know what is the full form of CTR? CTR का क्या मतलब है? कंट्रोल जोन, and CTA? कंट्रोल एरिया, ठीक है। what is TMA? टर्मिनल मूवमेंट एरिया, terminal movement area, very good. what is NDB, full form of NDB? नन डायरेक्शन बीकन, and full form of VOR? Very any high other frequency station? High frequency omnidirectional. omnidirectional. VHF omni range, very high frequency omni ठीक है range। चलो, moving to the next, I'll just ask two questions, ठीक है, and I'll hope for the appropriate answer. What if we will fly at 7,000 feet over Nagpur, 7,000 feet, and from 15 nautical mile away from Nagpur, ठीक है। नागपुर से 15 nautical mile distance में away and altitude is 7,000 feet. Whom we will call? Approach. Nagpur approach, very good. Now, whom we will call if we are at flight level 3,000 feet and a distance of 40 nautical mile? Tower. Another station? किसको कॉल करेंगे? अप्रोच, Approach. Why approach? Explain. कि वो 40 नॉटिकल माइल है ना, तो 25 से 50 के बीच में आ गया ना। हाँ, यानी टावर बेचारा है। Why? इसका चाहे डिस्टेंस आउट हो जाए या इसका अल्टीट्यूड आउट हो जाए, सबसे पहले लोग इसी से अपना पल्ला झाड़ते हैं कि अब टावर का खेला खत्म है, अब अप्रोच पे चलते हैं, ठीक है। सो टावर का रेंज लिमिटेड है कि डिस्टेंस और अल्टीट्यूड अगर दोनों मैच नहीं किया तो टावर का रेंज आउट हो गया, ठीक है। बट अप्रोच, अप्रोच इस पूरे एरिया का दादा है, ठीक है। वो टावर के रेंज को भी कवर करता है, ठीक है। तो चाहे डिस्टेंस उसके कैटेगरी में गिर जाए या अल्टीट्यूड उसके कैटेगरी में गिर जाए, आप अप्रोच को कॉल कर लिया। क्लियर या कुछ कंफ्यूजन है? क्लियर एवरीवन? क्लियर सर। ना मूविंग टू द नेक्स्ट, रूट का कॉल साइन होता है या रूट का कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है। और रूट हमेशा आपको दिखेगा पहला लेटर विथ इंग्लिश अल्फाबेट एंड उसके बाद कुछ नंबर रहेंगे। लाइक देखो यहाँ पे विस्की 28
गोल्फ 450, ठीक है, अल्फा 451, गोल्फ 450, लाइक दिस, गोल्फ 472। तो ऐसा होता है रूट का कॉल साइन। किसी किसी रूट पे क्या देखोगे कि शुरू में अल्फा न्यूमेरिक है और लास्ट में भी अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स है, ठीक है। यहां देखो, हमने आपको क्या बताया कि शुरू में रहेगा अल्फाबेट, बाद में रहेगा नंबर, यानी अल्फा न्यूमेरिक। लेकिन आपको कुछ कुछ ऐसे मिलेंगे अल्फा न्यूमेरिक अल्फा के फॉर्मेट में, कि शुरू में है विस्की 10 एंड देन आपको सियरा दिखेगा, फिर दिखेगा आपको नॉर्थ एन नवंबर। ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द रूट। इसको पढ़ेंगे विस्की 10 साउथ, इसको पढ़ेंगे विस्की 10 नॉर्थ, विस्की 10 नवंबर नहीं, विस्की 10 सियरा नहीं, विस्की 12 साउथ, विस्की 12 नॉर्थ, विस्की 12 नॉर्थ, विस्की 13 नॉर्थ, लाइक दिस, ठीक है। तो अगर किसी रूट के कॉल साइन में लास्ट में अल्फाबेट्स आते हैं तो वो उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। डायरेक्शन से इंडिकेशन का क्या मतलब है कि इस रूट पे, ठीक है, इस रूट पे जिसका नाम साउथ से डिजिग्नेट होता है, यहाँ पे साउथ वर्ड्स फ्लाइट प्रीफर की जाएगी, यानी इंदौर से मुंबई की तरफ आने वाली फ्लाइट को विस्की 10 साउथ से भेजा जाएगा। बट अगर किसी को मुंबई से इंदौर जाना है तो वो नॉर्थ वाले रूट को प्रीफर करेंगे, ये वाले, टू प्रिवेंट हेड ऑन कोलिजन, सामने से कोई टक्कर न मार दे इसके लिए, ठीक है। चलो हैव अ लुक ऑन अगेन। भोपाल, दिल्ली से भोपाल जिसको जाना है, ठीक है, दिल्ली से अगर कोई भोपाल जाएगा मींस नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लाई करेगा, तो उस टाइम पे वो फॉलो करेगा विस्की 20 नॉर्थ। बट अगर किसी को दिल्ली से उल्टा मैंने बोल दिया, सॉरी फॉर दिस। अगर किसी को भोपाल से दिल्ली जाना है मींस ही विल फ्लाई इन नॉर्थ डायरेक्शन, so in this case he will follow whiskey 20 north. But if somebody has to come from Delhi to Bhopal means he will travel south, in that case he need to choose whiskey 20 south. तो अगर किसी भी रूट के लास्ट में अल्फाबेट्स मिलते हैं तो उसको नवंबर सियरा एको या विस्की नहीं पढ़ना है, दैट इंडिकेट्स डायरेक्शन। विस्की 13 साउथ, विस्की 13 नॉर्थ, विस्की 13 एको, विस्की 12 विस्की, सॉरी वेस्ट, क्लियर। हालांकि आपको एको और विस्की, सॉरी बार बार भूल जाता हूं, ईस्ट और वेस्ट कम मिलेंगे, कम या नहीं मिलेंगे। जनरली आपको नॉर्थ और साउथ ही देखने को मिलेगा रूट के लास्ट में, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे विस्की 13 नॉर्थ, इसको पढ़ेंगे विस्की 13 साउथ, क्लियर। Am I clear now? Yes, no, anything? यस सर। ओके। अब आप पूछोगे सर आपने तो बोला कि एक रूट का एक कॉल साइन होता है, बट यहाँ पे तो इसने भरा हुआ है, एक रूट पे चार चार नाम लिखे हुए हैं, क्या बोलूं? भोपाल से अपानो तक के इस रूट को क्या बोलूं? क्या बोलना है इसको? यू कैन हैव डाउट सर एक रूट पे चार चार नाम, क्या बोलूं? सबसे पहले आप कोई सा भी रूट जो चूज करते हो दैट कम्स फ्रॉम फ्लाइट प्लान। तो फ्लाइट प्लान में इस रूट को आपने जो लिखा हम वही कॉल साइन बोलेंगे। अगर फ्लाइट प्लान में सेम रूट को बोला गया है विस्की 10 नॉर्थ, सो वी विल से विस्की 10 नॉर्थ। इफ सेम रूट इज विस्की 12 साउथ देन सॉरी विस्की 12 नॉर्थ, तो हम लोग बोलेंगे विस्की 12 नॉर्थ। तो फ्लाइट प्लान ने इस रूट को जो नाम दिया है हम वही नाम लेंगे। फिर आप बोलोगे सर ये तो हो गया जुगाड़, अब आप इसका बताओ थ्योरी कि ऐसा क्यों? फ्लाइट प्लान अगर मुझे बनाने दे दिया जाए देन हाउ आई कैन डिसाइड कि इस रूट को नाम क्या दूं? तो देखो सेम रूट कुछ देर तक कॉमन चल रही है, राइट, लाइक दिल्ली टू सॉरी बम्बई टू अपानो, ये रूट कॉमनली ड्राइव हो रही है। बट आफ्टर दिस रूट इज बीइंग स्प्लिटेड, विस्की 10 नॉर्थ ये हो गया, विस्की 12 नॉर्थ यहाँ पे है, ठीक है, विस्की 13 नॉर्थ ये हो गया, अल्फा 347 सीधा निकल गया बड़ोदरा से ऊपर, देख रहे हो अल्फा 347,
तो इस रूट में हमने 4 नाम देखे। विस्की 10 नॉर्थ इधर हो गया, विस्की 12 नॉर्थ बड़ोदरा तक, ठीक है, विस्की 13 नॉर्थ अहमदाबाद जा रहा है, एंड अल्फा 347 उदयपुर जा रहा है। देखो, इन दिस केस अगर आपका फ्लाइट प्लान बोलता है कि मुंबई से इंदौर जाना है, तो मुंबई से इंदौर जाने वाले रास्ते में क्या है, विस्की 13 नॉर्थ, तो ये रूट कहलाएगा पूरा का पूरा विस्की 10 नॉर्थ। समझ में आया? अगर आपको जाना है मुंबई से अहमदाबाद, तो मुंबई से अहमदाबाद वाले रूट का क्या नाम है, विस्की 13 नॉर्थ। तो ये वाला रूट उस टाइम पे, भले इसके 4 नाम है, बट उस टाइम पे ये रूट कहलाएगा विस्की 13 नॉर्थ। Am I clear on this? यस। अगर किसी को दिल्ली से वडोदरा जाना है, तो वडोदरा वाले का क्या नाम है, 12 नॉर्थ, तो उस टाइम पे सेम रूट कहलाएगा विस्की 12 नॉर्थ, बाकी तीनों कैंसिल हो जाएंगे। Am I clear over this? अगर रूट के 4-5 नाम है, तो आप उसके आगे पीछे एक्सटेंशन देखोगे, ठीक है, जो जिस एक्सटेंशन को मैच करेगा हम उसका वही नाम रखेंगे, ठीक है। देन who is going to let me know the flight is from Mumbai to Pratapgarh, ठीक है, फ्लाइट इज फ्रॉम मुंबई टू प्रतापगढ़, तो ये वाला रूट क्या कहलाएगा, रेड लाइन वाला, भले अल्फा इसकी 474। अल्फा 474। अल्फा 474, वेरी गुड। इफ वी आर हैविंग अ प्लान फ्रॉम मुंबई टू इंदौर, ठीक है, तो ये वाला रूट क्या कहलाएगा, जिसके 3 नाम है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये वाला रूट क्या कहलाएगा, मुंबई टू विस्की इंदौर, 10 साउथ। विस्की 10 साउथ, वेरी गुड। अगर आपका प्लान है मुंबई टू वडोदरा, तो उस टाइम पे ये वाला रूट क्या कहलाएगा, विस्की 12 साउथ। वेरी गुड। Papa Romeo Kilo, is that clear to you? Yes, sir. Okay, then you are going to answer me, if one aircraft is going from Mumbai to Udaipur, ठीक है, then ये वाला रूट जिसके 4 नाम है, उसको किस नाम से बुलाएंगे, मुंबई टू उदयपुर, Whiskey 347. अल्फा 347, it is अल्फा 347, right? समझ में आया, अल्फा 347, हाँ, ठीक है। So this is the chart reading techniques, and this is the completion of chart reading techniques. Now उसके अलावा आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिग्रीज में लिखा हुआ है, एंड इन एविएशन और इन जनरल डायरेक्शन का सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है एंगल। एंगल इज द बेस्ट डायरेक्शन इंडिकेटर एवर। अगर आप किसी को एंगल के रेफरेंस में बताओ ना, तो उससे बेहतर डायरेक्शन कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप लोगों में कितने लोगों ने पबजी खेला है, अभी उसको क्या बोलते हैं, पबजी गेम का क्या नाम हो गया है, BGMI। हाँ, बीजीएमआई। आप लोगों में से कितने लोगों ने खेला है, एनीवन? हाँ सर, मैं भी खेला हूँ। खूब खेला है। ठीक है। अल्फा जूलियट डेल्टा एंड अदर स्टेशन, हैव यू नोन टू दिस गेम? खेला है भाई, खूब। चलो ठीक है। नो सर, ओके, पबजी। अच्छा चलो ठीक है। तो वहां से एक बहुत बेस्ट एग्जांपल डिराइव होता है, दैट्स आई एम मेंशनिंग दैट गेम। क्या होता है कि व्हेन वी वर प्लेइंग दैट गेम इन माय मोबाइल फोन, सो सपोज देयर वाज अ एनिमी, ठीक है, सीटेड हेयर एट दिस ब्लैक पॉइंट, तो हम लोग क्या बोला करते थे व्हाइल प्लेइंग द गेम, ठीक है, हम लोग यही खेला करते थे, तो हम लोग बोलते थे कि 45 डिग्री पे एक एनिमी बैठा हुआ है, और 45 डिग्री इज द बेस्ट डायरेक्शन इंडिकेशन एवर। कोई भी अपने मोबाइल में 45 डिग्री पे देखेगा तो उसको दिख जाएगा कि यहाँ पे एनिमी है, ठीक है। सिमिलरली, इफ यू आर इन एयरक्राफ्ट एंड समवन विल आस्क कि वेयर यू आर हेडिंग,
आप किस दिशा में जा रहे हो। इफ यू से 45 डिग्री, दिस इज द बेस्ट डायरेक्शन इंडिकेशन एवर। क्यों? क्योंकि भारत का मैप तो सबके पास है, और आप जिस भी जगह पे रहोगे कार्टेशियन प्लेन कहीं भी ड्रॉ हो सकता है, एक्स एक्सिस कहीं भी ड्रॉ हो सकता है। तो अगर आपका हेडिंग 45 डिग्री है तो वो समझ जाएगा कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? तो एंगल इज द बेस्ट डायरेक्शन इंडिकेटर। नाउ ये जो रूट डिराइव हुआ है गोल 450, इसका ये एंगल है 252 इन कंपैरिजन विथ नागपुर VOR स्टेशन। देखो ये इसका एंगल है 252, गोल्फ 472 ये इसका एंगल है। ठीक है, इसी एंगल को चार्ट में हम लोग बोलते हैं रेडियल और हेडिंग। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछेगा विस्की नाइनर नाइनर, इसका हेडिंग कितना है, इस रूट पे अगर आप ट्रेवल करोगे तो आपके एयरक्राफ्ट का हेडिंग क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 027 degrees. Very good. 027. If someone will ask, if you are traveling on whiskey 138, what is going to be the heading of your aircraft? 308 डिग्री। 308 degree. Very good. So आप चाहे इसको रेडियल बोलो या आप उसको हेडिंग बोलो। ठीक है, वाई वी आर सेइंग इट रेडियल, बिकॉज इफ वी एज्यूम अ सर्कल, तो सर्कल में किसी ना किसी रेडियस को ये रूट रिप्रेजेंट करेगा ना, इसलिए इसको रेडियल भी बोल लेते हैं, या फिर आप इसमें हेडिंग बोल सकते हो। हेडिंग आप तब बोलते हो जब आप कॉकपिट में बैठ के एंगल बता रहे हो, तब आप बोलोगे कि दिस इज माई हेडिंग। बट इफ यू आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम आउटसाइड, यू कैन सिंपली से दिस इज योर रेडियल। नाउ सपोज यू आर एट ए स्टेशन डेल्टा, ठीक है, और आप यहां पे ट्रेवल कर रहे हो इस डायरेक्शन में। डेल्टा के इमीडिएट बाद मैं एक रेड डॉट बना रहा हूं, उस पर फोकस करो। डेल्टा के इमीडिएट बाद आप यहां पे फ्लाई कर रहे हो। आपसे कोई पूछेगा कि इस रेड डॉट पे आपका हेडिंग क्या है, तो आप क्या बताओगे? 131 डिग्री टुवर्ड्स भोपाल। वेरी गुड। यहां पे आप चाहो तो बोल लो 131 डिग्री टुवर्ड्स भोपाल, या फिर टुवर्ड्स को दूसरे टर्म में बोलते हैं इन बाउंड। इन बाउंड कि अगर हम डेल्टा पे भोपाल की तरफ जाएंगे तो हमारा रेडियल रहेगा 131 डिग्री, हमारा हेडिंग रहेगा 131 डिग्री। ठीक है, और सपोज एट एनी पॉइंट इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड कि आपका हेडिंग क्या है, तो आप जिस पॉइंट पे आपको हेडिंग चाहिए एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लो, ऐसा 0, 90, 180, 270। अब देखो यहां पे सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाला लाइन 131 डिग्री ड्रॉ किया, और ये वाला लाइन कितना ड्रॉ करेगा? हु इज गोइंग टू टेल? एनीवन? 311। ठीक है, 312 सॉरी 312 डिग्री, करेक्शन 311 ओनली। तो अगर हमको किसी पॉइंट पे डायरेक्शन पता नहीं चल पा रहा है, एक एक्स वे प्लेन ड्रॉ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि ये वाला रूट हमको क्या एंगल दे रहा है। यहाँ पे ये है 131 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा 311 डिग्री। क्लियर? तो अगर हम भोपाल की तरफ जा रहे हैं तो हमारा हेडिंग 311 डिग्री होगा, लेकिन इफ आई एम सेइंग इट रेडियल देन यू कैन ऑल्सो से 131। क्यों? क्योंकि रेडियस का क्या होता है, एक सर्कल पे सेंटर से यहां जाया, इसको बोलते हैं रेडियस। सो रेडियली इफ यू आर एट 131 तो आपका हेडिंग या तो 131 होगा या उसका अपोजिट 311 डिग्री होगा। तो दोनों केस में आपको सही बोला जाएगा। ठीक है, तो ये जो रूट का एंगल है आप उसको रिप्रेजेंट करोगे हमेशा बाय यूजिंग द टर्म रेडियल। क्लियर? ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया? हु इज गोइंग टू टेल? फिर से सर एक बार। वेरी गुड। चलो देखो मैं बताता हूं। अभी क्या है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है ना, एज आई सेड कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अपने आप में दो
एंगल कंस्टिट्यूट करता है, उसमें हमेशा दो एंगल निकालने की पॉसिबिलिटी होती है। कोई भी स्ट्रेट लाइन है, एक एंड पे अगर वो 270 बना रहा है ना, तो सेम स्ट्रेट लाइन दूसरे एंड पे 90 बनाता है। तो इन एविएशन अगर हम बोलते हैं हेडिंग, मतलब किस डायरेक्शन में हमारा एयरक्राफ्ट ट्रेवल कर रहा है, डन। तो हेडिंग हमेशा हमारा वो होगा जिस क्वाड्रेंट के तरफ हम मूव करेंगे। तो अगर मैं एक रेड डॉट बना रहा हूं, ठीक है, यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि इफ वी आर गोइंग टुवर्ड्स भोपाल, तो हमारे एयरक्राफ्ट का हेडिंग क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, ड्रॉ करो। आपके एयरक्राफ्ट का हेडिंग होगा 311 डिग्री इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये सबको समझ में आया? 311 डिग्री क्यों होगा? 180 प्लस करके रेसिप्रोकल हाँ, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। हाँ, 131 वैसे में भी थर्ड 180 प्लस क्वाड्रेंट करके। 270 टू 360 के बीच में होता है। तो आपका एयरक्राफ्ट का हेडिंग हो जाएगा 311 डिग्री। क्लियर? पापा रोमियो किलो। यस सर। ठीक है, तो जब आप बोलोगे हेडिंग, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका एयरक्राफ्ट मूव किस साइड कर रहा है। बट जब आप बोलोगे उसी टर्म को रेडियल, तो आप इसी पॉइंट पे या तो आप बोलो रेडियल 131 या आप बोलो रेडियल 311, दोनों आंसर आपके सही माने जाएंगे। तो रेडियल और हेडिंग में क्या डिफरेंस आपको पता चला? रेडियल में आपका दोनों एंगल सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा दो एंगल कंस्टिट्यूट करता है। सो यू कैन सिंपली से रेडियल 131 टुवर्ड्स भोपाल और रेडियल 131 इन बाउंड भोपाल। ठीक है, तो रेडियल बोलोगे तो चाहे आप 131 बोल लो या 311 बोल लो, दोनों सही है। बट जब आप हेडिंग बोलोगे तो उस टाइम पे आपको 311 डिग्री बोलना पड़ेगा। क्लियर सबको? यस सर। अल्फा जूलियट डेल्टा पावर में किलो। क्लियर? चलो Yes, अभी sir. क्लियर हो जाएगा, डोंट। यू आर एट यू आर एट कर दूं, यू आर एट अकेला। ठीक है, क्या नाम है, यू आर एट अकेला इधर। व्हाट इज गोइंग टू बी द हेडिंग ऑफ योर एयरक्राफ्ट? अकेला दिख रहा है सबको? रेड डॉट मैंने ड्रॉ किया है स्क्रीन पे, थोड़ा और बड़ा कर दूं। आपके एयरक्राफ्ट का हेडिंग क्या होगा? 13 डिग्री। 193 है ना? हाँ ठीक है, इट हाँ इज 193। यानी आप दिल्ली की तरफ जा रहे हो तो आपका हेडिंग है 193 डिग्री। ओके, यू आर एट ओसराम, व्हाट इज गोइंग टू बी द हेडिंग ऑफ योर एयरक्राफ्ट? 177 डिग्री। 177 डिग्री। ठीक है, नाउ इफ यू नहीं, आर एट, हेडिंग में बोला था ना रेसिप्रोकल बोलना है। लेकिन नहीं, हेडिंग में आपका एरो तो उधर दिखा रहा है ना। हेडिंग में आपको डायरेक्शन देखना है कि आप जा किधर रहे हो। हम्म। ठीक है, जरूरी नहीं कि रेसिप्रोकल हमेशा बोलना है। अगर हम अपना ट्रेवल सपोज इधर कर रहे हैं तो हमारा हेडिंग 131 भी हो सकता है ना, बिकॉज वी आर गोइंग टुवर्ड्स सेंटर। हम लोग आएंगे इस पे आगे, जब हम लोग पोजीशन रिपोर्ट करेंगे ना, वहां पे एक टर्म पढ़ेंगे इन बाउंड एंड आउट बाउंड। तब आपको वहां पे ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हम कब हेडिंग बोलते हैं और कब रेडियल बोलते हैं, या कब क्या बोलना चाहिए। अभी के लिए आप बस मुझे ये फाइंड आउट करके बताओ कि जब आप किसी रूट पे हो तो उसका एंगल आप क्या क्या बोल सकते हो। चाहो तो आप रेसिप्रोकल बोलो, वो भी सही होगा, या फिर उसका एक्चुअल एंगल फाइंड आउट करके हमें बताइए, वो भी सही होगा। ठीक है, सो इफ वी आर एट कलीना, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, हमारे एयरक्राफ्ट का हेडिंग क्या होगा? मैं एक्सवे प्लेन ड्रॉ करता हूं, क्या होगा? कुछ भी हाइपोथेटिकल बोल सकते हो, 30, 20,
इस टाइप से बताओ। 15. 15 डिग्री, वेरी गुड, चलेगा। नाउ इफ वी आर एट बेवॉक्स, this one, what is going to be heading of our aircraft? Go ahead. Over bevox. 90. नहीं, 360. 90 तो ईस्ट में होता है Okay, we are going north. और 1, हाँ Okay, okay. ठीक है। ऐसा परपेंडिकुलर लाइन हम लोग मैं समझ गया कि आपने 90 क्यों बोला, कि स्ट्रेट लाइन पे जो परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री होता है। ये हम एक्स का बताते हैं, ये दोनों के बीच का एंगल बता रहे हैं, उसका एक्चुअल हेडिंग 00 डिग्री है या फिर 360 बोलते हैं। 90 तो ये रहा, ठीक है। सो आप रेडियल पहचान लोगे, राइट। नाउ टेल मी व्हाट इज द रेडियल ऑफ अल्फा 474 ओवर प्रतापगढ़, ठीक है। आफ्टर प्रतापगढ़ व्हाट इज द रेडियल ऑफ अल्फा 474? बोलो। The question will repeat. What is the radial of route अल्फा 474 ओवर प्रतापगढ़? प्रतापगढ़ के ऊपर अल्फा 474 जो रूट है उसका रेडियल क्या है? 197 डिग्री. 019er मैंने इधर बनाया भी ना, आगे की तरफ अच्छा, रास्ता ओके, देखो, एरो तो ओवर बनाया भी है मैंने। 019. हाँ वही तो। ठीक है, ओके। व्हाट इज द रूट ऑफ अल्फा 474? व्हाट इज द रेडियल ऑफ अल्फा 474 टुवर्ड्स प्रतापगढ़? टुवर्ड्स प्रतापगढ़ अल्फा 474 019er. 197 भी चलेगा और 019er भी चलेगा, ठीक है। 019er भी और 197 भी, दोनों। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर उसका रेडियल आप एग्जैक्ट जो चार्ट पे लिखा है वो बोल दो, वो भी सही है, या उसका रेसिप्रोकल बोलो, वो भी सही है, ठीक है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? Yes sir. सियरा रोमियो जूलियट, ये Yes, समझ sir. में आ रहा है या कंफ्यूजिंग हो रहा है? नहीं सर, ठीक। देन tell me about radial of whiskey 13 after औरंगाबाद, sorry after अहमदाबाद। सरल कीजिए सर, कहाँ है उसकी मंत्री? whiskey 13 037 डिग्री। 037 डिग्री, वेरी गुड। सो आपको बस ये समझना है कि ये जो डिग्रीज में लिखे हुए हैं ना, दीज ऑल आर द रेडियल्स, ठीक है। सो वेन एवर इट विल कम एज अ पॉइंट ऑफ पोजीशन रिपोर्ट, हमको वहां पे ये पता चलना चाहिए कि रेडियल क्या है, ठीक है। वहां पे अगर आपसे बोला जाए रेडियल तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो एंगल्स है ना, यही हमारे रेडियल्स हैं, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखोगे कि इस चार्ट में हर एक व्यूअर स्टेशन के ऊपर उसके सिटी का नाम लिखा होगा। अगर उस स्टेशन के अंदर लिखने का जगह नहीं है तो कहीं बाहर लिखेगा, लेकिन लिखेगा जरूर। देखो उदयपुर में यूयूडी लिखने का स्पेस नहीं है तो थोड़ा साइड में लिखा उदयपुर। अहमदाबाद यहाँ पे है, लिखने का जगह नहीं है तो थोड़ा साइड में लिखा। कई बार किसी कॉम्प्लेक्स जगह होने के कारण वहां बीच में कुछ भी लिखने का स्पेस नहीं बचता है, सो दे आर यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है, कि यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, इस रूट का क्या नाम रहेगा, इस स्टेशन का क्या नाम रहेगा, वो पॉइंटर्स का यूज करेंगे। तो कई बार होगा कि आगे आप जब चार्ट पर होगे तो एक पॉइंट के लिए आप ब्लैंक हो जाओगे कि यहाँ इसका क्या नाम है,
तो वहां पे एकदम घबराना नहीं है, आसपास नजर दौड़ाओ और देखो कि कुछ नाम लिखा हुआ है क्या, या फिर किसी टाइप के पॉइंटर, किसी टाइप के एरो का यूज किया गया है क्या, वो वहां पे इंडिकेट करता है। ठीक है। Yes, sir. नाउ मूविंग टू द फाइनलाइजेशन ऑफ दिस चार्ट, आप चार्ट पे एक और अजीब टाइप का कलाकृति देखोगे। क्या? जस्ट लुक एट सोनगढ़। ये क्या है? ये एक रेड कलर का इनक्लोज्ड एरिया है। इसका कोई शेप या साइज फिक्स नहीं है, बट ये इनक्लोज्ड है, बंद है। एक ये सोनगढ़, और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ VAR 34। सेम यहाँ देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल है VIR 156, VIR 41, VIR 37। ये सब रेड कलर की चीजें जो है, ये सब क्या है, इसका क्या मतलब है? सो जस्ट हैव अ लुक, नथिंग इज टफ हियर। आपको टोटल इस टाइप के 3 टाइप के नाम मिलेंगे। ठीक है, आई विल शो यू ऑन एवरी चार्ट। हर चार्ट पे आपको कुछ ना कुछ इस टाइप का दिखेगा। टोटल 3 टाइप के आपको ये वाले नाम मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको मुंबई के एग्जाम्पल से समझाता हूं, मुंबई रीजन के एग्जाम्पल से। कुछ आपको मिलेगा VAR, फिर आपको मिलेगा VAP, या फिर आपको मिल सकता है VAD। ठीक है, आर का मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक है, आप अपना एयरक्राफ्ट उस एरिया के ऊपर फ्लाई नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्टेड एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया, मना किया हुआ है, और डेंजर जोन। ये 3 टाइप के रेस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं कि आप अपना एयरक्राफ्ट इसके ऊपर फ्लाई नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्टेड एरिया का क्या मतलब है कि वहां पे आपको परमिशन मिलेगा, लेकिन किसी टाइप का रेस्ट्रिक्शन रहेगा कि लाल किला के ऊपर से अगर आपको एयरक्राफ्ट फ्लाई करना है तो आपका अल्टीट्यूड 25,000 फीट एंड अबव होने चाहिए। 25,000 फीट के नीचे लाल किला के ऊपर फ्लाई नहीं कर सकते। तो वो कहाँ पहुंच गया? रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, कि वहां पे रेस्ट्रिक्शन है। मतलब किसी किसी को छोड़ रहा है। किसको छोड़ रहा है? जो 25,000 फीट के ऊपर फ्लाई कर रहा है। ठीक है, देन आता है प्रोहिबिटेड एरिया, मना किया हुआ है। आपका पार्लियामेंट हाउस, उसके ऊपर आप फ्लाई नहीं कर सकते। आपका प्रेसिडेंट हाउस, उसके ऊपर आप फ्लाई नहीं कर सकते। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। तो प्रोहिबिटेड, सीधा सीधी मना कर दिया। डेंजर जोन, डेंजर जोन वैसे एरिया होते हैं जैसे कोई माइनिंग वाला एरिया है, कोई वॉल्केनो वाला एरिया है। वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी, वॉल्केनो वाला एरिया है, या फिर किसी खास एयर स्पेस में कोई मिसाइल टेस्टिंग होनी है, तो 2 दिन के लिए उस एरिया को डेंजर जोन घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेंजर जोन। सो आपको अगर ऐसा दिखे VAR, मतलब V मतलब इंडिया का जोन, A मतलब वेस्टर्न रीजन का जोन, और R मीन्स रेस्ट्रिक्टेड एरिया। VAR मीन्स restricted area under Mumbai FIR, VAP prohibited area under Mumbai FIR, VAD danger zone under Mumbai FIR. If it is VID danger zone under Delhi FIR, VOP prohibited area under Chennai FIR. समझ में आ रहा है सबको? Affirm. Yes, Yes. sir. VOR क्या है? VOR Chennai. Restricted area of Chennai. FIR. रिस्ट्रिक्टेड एरिया अंडर चेन्नई FIR। फिर आप पूछ सकते हो कि सर वो तो समझा, ये 175 ये क्या लिखा हुआ है? दीज मे बी द सर्कुलर नंबर और पब्लिकेशन नंबर, नोटिस नंबर, जिस नोटिस के अंदर में इस एरिया को डेंजर जोन और रेस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित किया गया। ठीक है, ये देखो गोवा एयरपोर्ट VAD, क्या है इसका मतलब? बताओ। Mumbai FIR danger zone. हाँ, Under डेंजर जोन इन मुंबई FIR। Mumbai FIR. ठीक है, सो VAD, VAR, VAP, मेनली आपको 3 चीज पे ध्यान देना है, R, P या D। R मीन्स रेस्ट्रिक्टेड, P मीन्स प्रोहिबिटेड, D मीन्स डेंजर। क्लियर? चलो Yes, sir. एक और पूछूंगा, देन आई विल फिनिश दिस टॉपिक। ना पापा रोमियो किलो विल आंसर। गिर गया।
कोई तो एक एग्जांपल दिखे। हाँ, दिस वन क्या है ये? दिल्ली रीजन का रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। वेरी गुड, रेस्ट्रिक्टेड एरिया अंदर दिल्ली रीजन। VID 126 क्या है ये? दिल्ली रीजन का डेंजर जोन है। वेरी गुड। सो दीज आर द restricted area, prohibited area and danger zones. Now, ये जो आपको डॉटेड लाइंस मिलेंगे, ब्लैक डॉट लाइंस, दीज आर द इंटरनेशनल बाउंड्री। आप देखो, ये आपको भारत का मैप दिखेगा। इफ आई ड्रॉ, ये है ना, ये आपके भारत का मैप है। यहाँ पे यूके मतलब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, ठीक है, यूपी, हरियाणा, लाइक दिस। So these black dot lines, these are the international boundaries, ठीक है। एंड आपको चाहे मैप पे नॉर्थ लिखा हुआ मिले ना मिले, अगर एरो ऊपर के साइड में है, इट इंडिकेट्स नॉर्थ इज अप। या फिर अगर आपको एक ऐसा शेप दिखे, इट इंडिकेट्स नॉर्थ इज अप, ठीक है। ये नॉर्थ को इंडिकेट करता है हमेशा, इस टाइप के लोगोज, या ट्रेंगल अप साइड बना हुआ हो मीन्स नॉर्थ इस साइड है, ठीक है। So these were the chart reading techniques, and every terms has been explained for the charts. Now, as I am saying from day before yesterday, you all shall take color print out of the chart, both of the chart types that has been shared through Google Drive link, ठीक है। Google Drive पे दोनों टाइप के चार्ट, ठीक है, बेसिक और वर्जन 2, इन दोनों चार्ट्स का आपको प्रिंट आउट लेना है, हार्ड कॉपी में कलर, ठीक है। और आप फिर एक बार चार्ट पर नजर डालो, या इन फ्यूचर हम लोग जब चार्ट का यूज करके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि चार्ट्स का यूज कैसे करना है। बट उसके लिए चार्ट आपके पास हार्ड कॉपी में अवेलेबल रहने चाहिए, ठीक है। एम आई क्लियर ओवर द चार्ट रीडिंग टेक्निक? इसके अलावा अगर आपका चार्ट पे नजर गया हो, या आपने चार्ट की कुछ प्रैक्टिस किया हो, और आपको कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क मी हेयर, और वी कैन टेक अ ब्रेक एंड वी विल मीट एट 2200। 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, 10 बजे हम लोग फिर मिलते हैं विद न्यू टॉपिक। और अगला टॉपिक क्या रहेगा? सम ऑफ द कॉल्स दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एप्रॉन और ग्राउंड, ठीक है। चलो, अभी हम ये भी सीखेंगे कि हाउ टू राइट द आंसर ऑन योर नोटबुक, ऑन योर आंसर शीट। तो अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10 बजे विल मीट एग्जैक्टली, ठीक है।
Okay, how many of us has joined back? सब लोग आ गए? Yes, sir. Okay. So, today, after chart reading techniques, we'll learn how to write the answer. ठीक है? Be focused for a few 5 minutes only. I'm going to explain how to write the answer in your question paper, in your answer sheet. ठीक है? Now, let me share the screen. Okay, so let me share the screen. आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, दैट आर ऑफ A4 शीट साइज पेपर. ठीक है, कई बार आपसे कुछ लोग पूछता है ना कि हाउ वाज योर क्वेश्चन पेपर, सो यू कैन सी पतला सा था व्हाइट कलर का. ठीक है, एग्जैक्टली पतला सा व्हाइट कलर का पेपर आपको मिलेगा इन योर एग्जाम. थर्ड फोर्थ ऑफ द पेपर विल बी रिटेन एज अ क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन रहेंगे और उस क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा फ्लाइट प्लान रहता है. नाउ बैक साइड ऑफ दिस सीट विल बी ब्लैंक and one more A4 size sheet paper will be given along with you. So total आपको 3.5 पेज मिलते हैं एक बार में. ठीक है, और आंसर राइटिंग के लिए आप इस पेपर को 2 हाफ में फोल्ड कर लेते हो. ठीक है, इसको 2 हाफ में फोल्ड कर लेते हो. यानी आपका पेपर अगर मैं 3D में बनाऊं, या पता नहीं कैसा 3D इमेज बनेगा, बट इफ आई मेक इन 3D तो आपको टोटल ऐसा दिखेगा. ठीक है, आप इस पेपर को 2 हाफ में फोल्ड कर सकते हो लाइक दिस. इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ अ लाइन. ठीक है, इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ अ लाइन इनटू 2 इक्वल हाफ. और अगर आप लाइन ड्रॉ नहीं भी करोगे तो वंस यू फोल्ड इट इनटू 2 इक्वल हाफ, वहां पे एक ट्रेस पड़ जाता है, एक वहां पे निशानी तो पड़ ही जाती है जब आप पेपर को आधे से मोड़ते हो लंबा लंबी. ठीक है, सो आपको एक बार में 3.5 पेपर मिलेंगे, आपको उस पे आंसर करनी है. इफ यू नीड एडिशनल सीट दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू. ठीक है, बट 3.5 पेपर इज इनफ फॉर द आंसरिंग. ठीक है, 1 एडिशनल सीट ब्लैंक, उसका दोनों साइड पेज, आधा क्वेश्चन पेपर, 1/4 ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड बिहाइंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर. तो इतने सारे पेपर आपको मिलते हैं. अब आप बोलोगे कि सर फोल्ड करना जरूरी है क्या? यस. ठीक है, फोल्डिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर इज मैंडेटरी. व्हाई? बिकॉज जो आपका आंसर राइटिंग का टेक्निक होता है दैट इज सच, हैव अ लुक. ठीक है, ध्यान से समझना. जो आपके आंसर राइटिंग का मेथड होता है,
एक साइड में आप लिखते हो जो कि ट्रांसमीटर के द्वारा बोला गया, और दूसरे साइड में लिखते हो कि आपको रिसीव क्या क्या हुआ। कोई भी आरटी का कॉल लॉग इसी फॉर्मेट में लिखाता है। यानी एज अ ट्रांसमीटर, आप एज ए स्टूडेंट ट्रांसमीटर सीट पे बैठे हो, तो आप जो भी बोलोगे वो इस साइड में लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। और एटीसी से जो रिप्लाई आएगा, या एग्जाम में एटीसी कौन है? एग्जामिनर। एग्जामिनर से जो भी रिप्लाई आएगा वो राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है सबको? ट्रांसमीटर जो बोलेगा वो लेफ्ट हैंड साइड में, एज ए स्टूडेंट आप जो आंसर लिखोगे वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, और आप जो रिस्पॉन्स सुनोगे वो राइट हैंड साइड में लिखोगे। क्लियर? नाउ यस सर। सपोज आपने मांगा इंजन रनअप का अप्रूवल मांगा, तो आपने जो मांगा, जो आपने आंसर दिया वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा, और उसके रिस्पॉन्स में एग्जामिनर ने जो बोला वो राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। क्लियर? नाउ आफ्टर दिस, जो आप ट्रांसमिशन का कॉल लिखोगे, ठीक है, यानी जो आप आंसर अपना रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन पेपर में लिखोगे, वो आप जिस स्पेस में लिखोगे उसके जस्ट अपोजिट पैरेलल में आप किसी भी टाइप का सेंटेंस नहीं लिखोगे, ये खाली रहेगा। और जिस पार्ट ऑफ स्पेस में आप रिसीवर का बोला हुआ मैसेज सुनोगे और आप उसको नोट करोगे, उसके अपोजिट भी कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, खाली लिखा रहेगा। यानी आपके हर एक ट्रांसमिशन के पैरेलल वेकेंट रहेंगे। ठीक है, आपको जिग जैग में लिखना है। ठीक है, पैरेलल राइटिंग नहीं करनी है, हमेशा जिग जैग में लिखना है। ये समझ में आ रहा है? नहीं सर, एक बार फिर से। क्यों? हाँ, आपको पैरेलल राइटिंग नहीं करनी है। सपोज ये आपके पास पेपर है, आपने क्वेश्चन में पूछा रिक्वेस्ट इंजन रनअप ड्यूरेशन 10 मिनट्स विक्टर टैंगो सियरा रोमियो जूलियट, ये आपने लिखा। एटीसी ने रिस्पॉन्स दिया कि विक्टर टैंगो सियरा रोमियो जूलियट इंजन रनअप अप्रूव्ड। तो आप इसके राइट हैंड साइड में जिस जिस जगह पे आपने अपना आंसर लिखा है उसके इक्वली पैरेलल कुछ भी नहीं लिखोगे। आप जो रिस्पॉन्स सुनोगे वो अपने लिखे हुए सेंटेंस के नीचे लाइन में लिखोगे, उससे नीचे लिखोगे। तो आपको जिग जैग में लिखना है। जिग जैग में क्या लिखने का मतलब है? वह लुक, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, पैरेलली कुछ नहीं होगा, यानी आपके आंसर के पैरेलल खाली रखे जाएंगे और उसके रिस्पॉन्स के पैरेलल भी खाली रखे जाएंगे। क्यों? दिस रिप्रेजेंट्स द टाइम। ठीक है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है और एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है कि पहले कौन सा एक्शन हुआ। तो जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी पोर्शन लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो पहले किया गया, जो नीचे लिखा हुआ है बाद में किया गया, फिर उसके नीचे वाला थर्ड, उसके नीचे वाला फोर्थ। तो इससे कोई ये पता लगाएगा कि पहले कौन बोला था। पहले ट्रांसमीटर ने बोला, फिर रिसीवर ने रिप्लाई दिया, फिर ट्रांसमीटर ने बोला, फिर रिसीवर ने रिप्लाई दिया। अगर हम इस दोनों को एक दूसरे के पैरेलल लिख देंगे तो इसको माना जाएगा कि एक ही टाइम पे ट्रांसमिशन भी हुआ और उसी टाइम पे रिसेप्शन भी हुआ, जो कि हो ही नहीं सकता इन द फील्ड। एक बार में या तो ट्रांसमिशन होता है या एक बार में रिसेप्शन होता है, दोनों एक्शन एक साथ नहीं होते हैं। इसलिए लॉग बनाते टाइम हम उसको जिग जैग मोशन में लिखते हैं कि इस टाइम पे, इस टाइम फॉर्मेट पे सिर्फ ट्रांसमिशन हुआ और इस टाइम फॉर्मेट में सिर्फ रिसेप्शन हुआ। ट्रांसमीटर के टाइम पे रिसेप्शन ब्लैंक था और रिसेप्शन के टाइम पे ट्रांसमिशन ब्लैंक था। समझ में आया? यस सर। देखो, और जो आप रिस्पॉन्स लिखोगे वो एग्जैक्टली बिलो टू योर लास्ट लाइन। ठीक है, लास्ट लाइन के नीचे लिखोगे, मैच नहीं होने देना है, पैरेलल नहीं लिखना है, नहीं तो बोलेगा कि फिर तो तुमने सही से सुना ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब रिसेप्शन हो रहा था आप अगर कुछ बोलोगे तो आप सुन क्या रहे हो फिर? तो एक बार में या तो बोलो या सुन लो। ठीक है, इसीलिए जब ट्रांसमीटर चालू है रिसेप्शन क्लोज्ड, जब रिसेप्शन चालू है ट्रांसमिशन क्लोज्ड।
और आपका पुश टू टॉक स्विच इन एयरक्राफ्ट ऐसे ही काम करता है। अगर आप प्रेस करोगे ना टॉक टॉक, जब आपका ट्रांसमिशन आएगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, और जब आप बटन रिलीज करोगे, जब आपका रिसीवर ऑन रहेगा, तब आप कुछ बोल नहीं पाओगे। अगर आप बोलोगे भी तो माइक में कैप्चर ही नहीं होगा। समझ में आया ये वाला, हाउ टू राइट द आंसर पापा रोमियो किलो? इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. चलो, आई एम शोइंग यू एग्जांपल, लेट्स सी हाउ इट इज बीइंग रिटन। देखो, ठीक है, दिस इज द रियल आंसर राइटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहां पे देखो, क्वेश्चन था कुछ भी, तो जो हमने आंसर लिखा उसके अपोजिट की जगह को हमने खाली रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। रिसीवर ने जो बोला हमने उसके पैरेलल के जगह को खाली रखा है, ठीक है। फिर ट्रांसमीटर ने जो बोला हमने उसके पैरेलल के जगह को खाली रखा है, देख रहे हो, लाइक दिस ओनली। तो जब ट्रांसमिट होगा, रिसीविंग ब्लैंक रखेगी जाएगी। Have you got that? यस सर। तो अभी जब मैं आपको आंसर देके बताऊंगा, आंसर राइटिंग करूंगा, तब आपको ये चीज पता चलेगा कि लिखना कैसे होता है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो। ये वाले आंसर टाइप में आपको कुछ डाउट आ रहा है किसी भी टाइप का, यू कैन आस्क मी हियर। एनीवन? नो? गुड टू गो अहेड? यस सर। Yes. ठीक है। नाउ अभी सबसे पहले हम एक फ्लाइट के ऑपरेशन को समझेंगे, तब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। फ्लाइट का ऑपरेशन क्या होता है जनरली? सपोज ये एक एयरपोर्ट है और ये एक एयरपोर्ट है, यहाँ पे एक है रनवे और यहाँ पे एक है रनवे, ठीक है। रनवे को मैं ब्लैक बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। नाउ अभी ऑपरेशन कैसा होता है, एक एयरक्राफ्ट यहाँ पे पार्किंग स्टैंड में पार्कड है, ठीक है। वो क्या करेगा, पहले पुश बैक करेगा और फिर टैक्सी वे के थ्रू रनवे पे पहुंचेगा। रनवे पे टेक ऑफ रन करके टेक ऑफ किया, जब टेक ऑफ करेगा तब वो क्लाइंब करेगा, ये आपका क्लाइंबिंग फेज है। एक अल्टीट्यूड पे पहुंच के वो स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट करेगा, उसको बोलते हैं क्रूज। फिर वो वहां से डिसेंड स्टार्ट करेगा, डिसेंड स्टार्ट करेगा, रनवे पे लैंड करेगा और वहां से टैक्सी वे होते हुए स्टैंड पे जाके पार्क कर देगा। यही होता है एक बेसिक एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, ठीक है। गोइंग टू द रनवे, क्लाइंब, क्रूज, डिसेंड, अगेन लैंड, टैक्सी एंड एप्रॉन। समझ में आया सबको? बेसिक फ्लाइट ऑपरेशन क्या होता है, ऐसे ही होता है, क्लाइंब, क्रूज, लैंड। इसी के बीच में काफी सारे गॉसिप्स, काफी सारे सिनेरियो, काफी सारे कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है अलोंग विथ एटीसी, और वहीं पे बात करने के लिए आपको आरटी चाहिए होता है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे विच कैन बी परफॉर्म्ड व्हेन योर एयरक्राफ्ट इज ऑन ग्राउंड। तो अभी से जो हम क्वेश्चन का फेज स्टार्ट करेंगे, जो एक्चुअल में क्वेश्चन आंसर का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, वो हम 5 फेज में कंप्लीट करेंगे। पहले, जब आप डिपार्चर एरोड्रोम के ग्राउंड पे हो। दूसरा, जब आप डिपार्चर से इनिशियल क्लाइंब के फेज में हो। तीसरा, जब आप क्रूजिंग फेज में हो। चौथा, जब आप अप्रोच फेज में हो एट योर अराइवल एयरपोर्ट। एंड पांचवा, जब आप अराइवल एयरपोर्ट पे पहुंच गए, ठीक है। सो अभी से 5 फेज में क्लास चलेगा, ठीक है। 5 फेज क्लास को कंप्लीट करने में 10 दिन लगेंगे। क्लियर? सो आज हम देखेंगे फेज 1 ऑफ क्वेश्चन आंसर मेथड। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा, आप देख पा रहे होगे कि अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा, दीज वेयर आर द डेफिनेशंस ओनली। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन ही करता जा रहा हूं पिछले 7-8 दिन से कि इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो दीज वेयर द डेफिनेशन, वो मैंने आपको इसीलिए इतने डिटेल में पढ़ाया। कुछ कुछ चीजें आपके सर से ऊपर से भी जा रही होंगी, आई टोटली एग्री,
बट उसको पढ़ाना डिटेल में जरूरी था कि आपका बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो गया। अब आप चाहे तो 10 फ्लोर की बिल्डिंग बना लो या 20 फ्लोर की बिल्डिंग बना लो, इट इज अप टू यू। फाउंडेशन को धीरे धीरे बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम फटाफट सिलेबस खत्म कर देते हैं। तो आपके पास अभी भी टाइम रहेगा कल से। आप चाहो तो ये जो फाउंडेशंस के थियरी थे, जो टॉपिक थे, जो डेफिनेशन थे, टोटल 8 लेक्चर है, एक लाइन से फिर से रिवाइज करके देख जाओ इन योर लीजर टाइम, ताकि आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से बने। जब हम प्रैक्टिस सेशन पे आएंगे तो वापस मुझे थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं जाना पड़े, वहां पे आपको थ्योरी ऑलरेडी समझा हुआ रहे, हम सिर्फ उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बताते जाएंगे। क्लियर? तो आपके पास टाइम रहेगा तो आप जाके पिछला वीडियो देखना, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राउंड पे कौन कौन टाइप के कॉल हो सकते हैं। बट कौन कौन टाइप के कॉल देखने से पहले, किस किस टाइप के कॉल देखने से पहले मैं 3 टाइप के कॉल लिखूंगा और आज हम उसी को प्रैक्टिस करेंगे। उससे आपका एक बेसिक आंसर राइटिंग फॉर्मेट आपको समझ में आएगा, ठीक है। एडवांस में आंसर राइटिंग या आंसर राइटिंग टू अ बिग लेवल विल सी आफ्टर होली। नहीं तो मैं जो आज पढ़ा के जाऊंगा वो 17 को आप लोग सब भूले हुए रहोगे, दैट आई नो, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रिक्वेस्ट इंजन रन अप अप्रूवल, ठीक है। इंजन ग्राउंड रन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं EGR, इंजन ग्राउंड रन अप्रूवल, ठीक है। कि आप इंजन ग्राउंड रन का अप्रूवल कैसे मांगोगे, क्या मांगोगे। बिफोर गोइंग देयर, ठीक है, बिफोर गोइंग देयर, हु इज गोइंग टू टेल मी वन हाइपोथेटिकल फ्लाइट प्लान। आप चाहो तो रेफरेंस ले सकते हो with the chart and with the notes, but I need a flight plan. Who is going to tell me all 13 parameters? Please go ahead. और for the, मैं आज चार्ट शेयर करके रखता हूं बिकॉज आई नो कि सबके पास चार्ट अवेलेबल नहीं है। फॉर द फ्लाइट प्लान प्लीज यूज चार्ट नंबर 2, नहीं चार्ट नंबर 2 नहीं, 1 ही यूज करो, चार्ट नंबर 1, एंड लेट मी नो अ फ्लाइट प्लान। गो अहेड एनीवन। चाहो तो आप नोट से रेफरेंस लेके बताओ, बट बताओ, ट्राई करो आंसर करने का। चलो, सियरा रोमियो जूलियट, गिव मी अ I'll प्लान। try. और अल्फा जूलियट, हाँ I'll गो try. अहेड, यू ट्राई। हाँ, मैं दूं अल्फा जूलियट डेल्टा। Okay, okay, you can try. Okay. एनीवन, ओपन टू ऑल, whoever is ready with practice, ready with answer, grab the opportunity, market is open। सब लोग अपने अपने, हाँ, एयरक्राफ्ट वेक्टर टैंगो अल्फा जूलियट डेल्टा। that is aircraft identification, not aircraft, ठीक है। गो अहेड, विक्टर Type टैंगो अल्फा of जूलियट, aircraft Airbus 320. Type of aircraft 320 Airbus 320. Turbulence medium. Type of equipment standard. Type of flight schedule. शेड्यूल्ड, Departed aerodrome Mumbai to Nagpur. नागपुर Alternate का कोड बताओ। Vector Alpha November Papa. ठीक है, अल्टरनेट Alternate फ्रॉम, aerodrome Jabalpur. Vector Alpha Juliet Bravo. Type of flight rule IFR. Route Golf 450. Time 0110. Flight level altitude. Flight level 310. VIP on board. Other information VIP on board. ठीक है। नाउ लेट मी रिव्यू योर फ्लाइट प्लान। You are saying कि you are operating an aircraft which is Airbus A320
Victor Tango Alpha Juliet Delta, vector turbulence medium, all equipment standard. Scheduled flight Mumbai to Nagpur, alternate aerodrome is Jabalpur, under flight rule IFR, route goal 450, time of departure is 0110, flight level 310 and VIP on board. Let's see, all 13 parameters are available. Even if I know कि all 13 parameters are available, what I do counting by the numbering. ये आप सब लोग करोगे, जब भी आप आंसर दे लोगे तो काउंट करके देखो कि क्या मैंने 13 के 13 पैरामीटर्स दिए कि नहीं। तो शुरुआत में कुछ दिन आप काउंट करो, धीरे धीरे आपको ये आदत हो जाएगी, ठीक है। तो सब कुछ जानते हुए भी मैंने एक एक पैरामीटर को गिना कि क्या वो 13 हुए कि नहीं। अगर वो 13 नहीं होंगे तो हम लोग देखेंगे कि कौन से पैरामीटर को हमने मिस किया, ठीक है। सो दिस इज द फ्लाइट प्लान, होप एवरीवन अंडरस्टूड। समझ में आया ये फ्लाइट प्लान कहां से कहां है? मुंबई टू जबलपुर बाया गोल 450, सॉरी मुंबई टू नागपुर बाया गोल 450, alternate is जबलपुर। सो इन द चार्ट इफ यू कैन सी, ये वाला ग्रीन कलर का जो मैं एनोनेट कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला, राइट। चार्ट दिख रहा है सबको? नहीं? यस दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। ठीक है। सो क्वेश्चन इज रिक्वेस्ट इंजन ग्राउंड रन अप्रूवल। चलो, बिफोर एक्सप्लेनिंग द आंसर ऑफ दिस, अल्फा जूलियट डेल्टा फ्रॉम योर साइड, फ्लाइट प्लान इज विद यू, आपने ही पैरामीटर दिया है, आप बताओ इंजन ग्राउंड रन का अप्रूवल कैसे मांगू। मैं बोलूंगा बट आई एम गिविंग अ ट्राई टू अल्फा जूलियट डेल्टा। गो अहेड। Mumbai ground, vector tango हाँ। alpha Juliet delta on 118 liner, type of aircraft Airbus 320, vector turbulence medium, current position standing, correction, current position stand to apron 5, request engine run up, ideal power, ऑन आइडल पावर, आइडियल नहीं आइडल, on idle power, duration 10 minute, vector tango alpha Juliet delta। वेरी गुड। ये कल आपने देखा था ना कि इंस्टीड ऑफ सेइंग गो अहेड, हमने अपने क्वेश्चन के लास्ट में अपना कॉल साइन कर दिया। कल हमने बताया था ना, गो अहेड के बदले क्या करना है, ये करना है। जब आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाए ना तो लास्ट में अपना कॉल साइन बोल दो, ठीक है। नाउ इन द रिस्पॉन्स, हाउ एटीसी विल गिव रिस्पॉन्स, हैव अ लुक आउट। ये वाला हमने क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये ट्रांसमीटर, ये रिसेप्शन। सपोज एटीसी हैज गिवन रिस्पॉन्स, अब देखो एटीसी का रिस्पॉन्स मैं कहां लिखूंगा, इसके नीचे, ठीक है। विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट डेल्टा मुंबई ग्राउंड, इंजन ग्राउंड रन अप्रूव्ड, रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन। Engine runner approved, will report after run up, vector tango रिपोर्ट, हाँ, विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट Juliet delta। विल रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन आल्सो यू कैन से, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैं फाइनल कॉल दूंगा, ठीक है, कोई घबराना नहीं, मैं सबको बताऊंगा, अपने साइड से भी आंसर दूंगा। नाउ सबसे पहले
इन्होंने बोला मुंबई ग्राउंड, ये क्या है W1, कॉल किसको जा रहा है, मुंबई ग्राउंड को। अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि W3 से पहले हम लोग W4 लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा कि हमारा मैटर पार्ट यानी जो हमारा इंटेंशन ऑफ कॉल है बाद में उसको बैठ के डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले ये कॉल गया मुंबई ग्राउंड को। नाउ आप चाहो तो मुंबई ग्राउंड ऐसे लिख लो, मुंबई ग्राउंड, या आप चाहो तो लिख लो मुंबई SMC, या फिर आप लिख लो मुंबई GND, जो आपको सुटेबल लगे। या फिर मुंबई का व्यूआर कोड क्या है, BBB, तो आप ये भी लिख सकते हो मुंबई ग्राउंड या मुंबई SMC, सबका मतलब एक ही है। या फिर इकाउ लोकेशन डेजिग्नेटर के फॉर्मेट में लिखो VABB SMC। तो मेरे जो आंसर राइटिंग का मेथड है दैट इज फॉलोइंग इकाउ डेजिग्नेशन। आप इतने तरीके लिख सकते, सबका मतलब एक ही है। ग्राउंड को देखो, आप ग्राउंड लिखो या SMC लिखो या GND लिखो, सब चलेगा। मुंबई को आप या तो पूरा सिटी का नाम लिख लो या सिर्फ उसका व्यूअर कोड लिख लो या उसका इकाउ लोकेशन डेजिग्नेटर लिख लो, ऑल एक्सेप्टेबल, ठीक है। सो पता चला आपको, ये सब लिख सकते हो, दिस इज परमिसेबल किसी भी फॉर्मेट में, लेकिन बोलना है हमेशा मुंबई ग्राउंड। क्लियर? यस नो एनीथिंग, समझ में आया सबको कि व्हाट आर द Yes, sir. फॉर्मेट ऑफ राइटिंग इट इज। हाँ गाइस, लिटिल बी लिटिल इंटरेक्टिव, ताकि मुझे पता लगेगा ना हाँ ना क्या, ठीक है। इफ नो बैकग्राउंड नॉइज इज देयर देन यू कैन टर्न ऑन योर माइक, तभी तो मुझे पता चलेगा रेस्पॉन्स से, ठीक है। आई एम ऑल्सो विदाउट कैमरा, मैं कैमरा पे नहीं हूँ, एंड यू गाइज ऑल्सो हैव स्विच्ड ऑफ योर कैमरा, तो पता कैसे चलेगा बढ़ूं कि आगे नहीं, ठीक है। तो यस नो कीप इंटरेक्टिव। नाउ अभी दिस कॉल हैज गॉन टू मुंबई ग्राउंड। W1 कौन है, मुंबई ग्राउंड। W1 क्या होता है, whom are you calling, मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, मुंबई ग्राउंड को। W2 क्या है, who are you, I am Victor Tango Alpha Juliet Delta, which frequency I am using 118.9er। तो ये हो गया हमारा W। अब बच गए डिस्कशन के मैटर। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था ना कि पैरेलल राइटिंग नहीं करेंगे, देखो इसके पैरेलल में हमने खाली स्पेस छोड़ा है, सेम रिसेप्शन के पैरेलल में हमने खाली स्पेस छोड़ा है, और अगेन इसके पैरेलल में हमने खाली स्पेस छोड़ा है, दिख रहा है। तो जिग जैग मोशन में हम लिखेंगे, जिग जैग मोशन क्या है, ऐसा। क्लियर? Yep. ओके, नाउ वील गो टू द आंसर राइटिंग मेथड कि आंसर में हमने क्या सब लिखा। अब देखो आंसर में हमने लिखा, ठीक है, कि वी आर एयरबस 320 एयरक्राफ्ट, और हमारा वेग टर्बुलेंस है मीडियम। वेग टर्बुलेंस मीडियम बोलना क्यों जरूरी है, ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि वेग टर्बुलेंस आपके एयरक्राफ्ट का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर वेग टर्बुलेंस आप मेंशन नहीं करोगे तो आपके एयरक्राफ्ट का इंजन ऑन करना किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए भारी पड़ सकता है। तो किसी भी केस में आपको इंजन ऑन करना पड़े, आप वहां पे अपना वेग टर्बुलेंस मेंशन करो। तो आपके एयरक्राफ्ट का वेग टर्बुलेंस है मीडियम। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आप पोजीशन कहां पे हो, करेंटली आप किस जगह पे खड़े हो, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इंजन रनअप का परमिशन। ये कार्यक्रम करने में आपको कितना टाइम लगेगा। सो दीज 3-4 रियलिस्टिक पैरामीटर्स यू नीड टू एक्सप्लेन। डन? और लास्ट में आप अपने कॉल साइन से उसको क्लोज कर दिए। अब जब आपने अपना कॉल साइन लास्ट में बोला मींस यू हैव गिवन इंडिकेशन कि हमारा कॉल खत्म, अब आपकी बारी। उसने कॉल किया तो उसने क्या बोला, विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट डेल्टा। नाउ वी बिकेम W1 फॉर ATC, ATC भी तो W4 रूल फॉलो करेगा, हम लोग अब ATC के लिए हैं W1, और W2 वो खुद है। तीसरा उसने क्या बोला, इंजन रनअप अप्रूव्ड एंड रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन, जब आप काम कर लोगे ना तो मुझे बताना। अब देखो हमने आपको बताया था ना कि किसी भी टाइप का अप्रूवल मिले, किसी भी टाइप का परमिशन मिले,
उसका रीड बैक मैंडेटरी है। तो इसने क्या बोला, इंजन रनअप अप्रूव्ड, तो हमने भी मेंशन किया इंजन रनअप अप्रूव्ड। एंड फिर उसने क्वेश्चन पूछा रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन, जब खत्म हो जाएगा तो बताना। तो आप इसको दो टाइप से बोल सकते हो, विल रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन, जब खत्म हो जाएगा तो बोलूंगा, या फिर आप सिंपल बोलो विल को विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट डेल्टा। समझ में आया सबको? यस, नो, एनीथिंग समझ में आया? Yes. Okay. I'm giving one final call for you guys. You can make a note. आप सब लोग नोट बनाओगे। अच्छा, मैं एक सही चीज बताना भूल ही गया, हालांकि दैट इज अ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट एंड आई थिंक मैंने किसी क्लास में बोला था, तभी मैंने उसको रिपीट नहीं किया। आप लोग मेरे क्लास में जब भी बैठो पेन एंड पेपर के साथ बैठो, ठीक है? क्योंकि मैं बोलते बोलते बहुत कुछ भूल जाता हूँ, ठीक है? इसका मतलब ये है, बिकॉज आई नो द कंप्लीट एग्जामिनर सिनेरियो, तो मैं आपके हर एक टर्म को एक्सप्लेन करते हो बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, जो कि डायरेक्ट होते हैं कई बारी और कई बारी इनडायरेक्ट होते हैं। तो आप अगर पेन एंड पेपर के साथ अवेलेबल रहोगे तो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन को नोट करते जाओगे, जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेगा, ठीक है? बीइंग अ ट्यूटर इट इज अ वेरी टफ जॉब कि हर कुछ डायरेक्ट वे में शेयर हो, ठीक है? बहुत सारी चीजें इनडायरेक्टली बोली जाती है। जैसे अभी ये इंजन रनअप का कॉल था, मैंने आपको बातों बातों में ही क्या समझाया कि मुंबई ग्राउंड कितने तरीके से लिख सकते हो, चाहे एसएमसी लिखो, चाहे जीएनडी लिखो, चाहे पूरा मुंबई लिखो, या उसका वीओआर कोड लिखो, या उसका इकाउ लोकेशन डेजिग्नेटर लिखो, ये मैंने आपको बताया। लेकिन क्या ये टॉपिक ये था कि ग्राउंड को कितने तरीके से लिखना है? नहीं, टॉपिक था रनअप के बारे में, बताया मैंने आपको ये। सो दिस इज द इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। ये आपके पास पेन एंड पेपर अवेलेबल रहेगा तो आप झटक से नोट कर लोगे अपने पेपर में, ताकि आपको इन फ्यूचर काम देगा। नहीं तो जो मैंने बताया वो आप भूल जाओगे। और टॉपिक टॉपिक तो मैंने रखा ही नहीं कि द टाइप ऑफ नेम्स ऑफ एटीसी, टॉपिक है मेरा इंजन ग्राउंड रन। समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस? तो मैं कुछ दूसरा टॉपिक एक्सप्लेन करता रहूंगा, वहीं पे कुछ एक इंपॉर्टेंट मैसेज आ सकता है, तो उसके लिए पेन एंड पेपर के साथ रेडी रहो। हालांकि जो कुछ भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बीच में बोला करूंगा, मेक अ नोट और दिस पॉइंट शैल बी नोटेड। सो द टाइप ऑफ इंजन रनअप कॉल शैल बी नोटेड। सब लोग इसका आंसर नोट करो। आई एम गोइंग टू गिव वन फॉर्मेट फॉर यू, ठीक है? ओके, आई एम गोइंग टू गिव फाइनल फॉर्मेट फॉर ग्राउंड रन कॉल, एवरीवन विल बी नोटिंग। दिस कॉल इज बीइंग इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस अबव फ्लाइट प्लान। ऊपर के फ्लाइट प्लान में जो कुछ भी लिखा हुआ है हम उसको यूज करके ये कॉल देंगे, ठीक है? ऊपर में हमारा कॉल साइन क्या है? अल्फा जूलियट डेल्टा। एयरक्राफ्ट है एयरबस 320, वेग टर्बुलेंस है मीडियम। हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पे खड़े हैं, देख रहे हो, इसलिए कॉल मुंबई को जाएगा, ठीक है? हैव अ लुक। मुंबई ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट डेल्टा एयरबस 320 वेग टर्बुलेंस मीडियम। करेक्शन, Victor Tango Alpha Juliet Delta on 118.5 Airbus 320 wake turbulence medium currently positioned on, या फिर current position, ठीक है? current position या currently positioned on, current position stand for apron 3, apron 3 के स्टैंड नंबर 4 पे request engine run up on idle power, duration 15 minutes. Victor Tango Alpha Juliet Delta। देखो, एक सेकेंड, ये जो फ्रिक्वेंसी लिया है हमने ऑन 118.5, ये हम ग्राउंड ये की है फ्रिक्वेंसी लेंगे या कुछ भी ले सकते हैं?
नहीं नहीं, ग्राउंड की फ्रीक्वेंसी लेंगे, ये हमने हाइपोथेटिकली बोला है, ओके 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 अपने मन से बोला है। तो मुंबई ग्राउंड का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा हम उसको लेंगे, ओके ओके ठीक है। 1 to 1 decimal oke उसका 1 to 1 डेसिमल लाइनर है, देन विल टेक 1 to 1 डेसिमल लाइनर, ठीक है। तो आपने देखा क्या क्या इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में। सबसे पहले आपका एयरक्राफ्ट टाइप और वेग टर्बुलेंस, दूसरा आप किस पोजीशन पे हो, तीसरा आपको चाहिए क्या। क्लियर, ये फॉर्मेट सबको क्लियर है। यस सर। clear clear अब देखो करेक्शन का इस्तेमाल, ठीक है। हालांकि आई न्यू, बट मैंने आपको दिखाने के लिए समझाया, या फिर चलो मेरे से मिस्टेक ही हो गया। बोलते बोलते हमने क्या बोल दिया, करंटली कंटिन्यूअस फ्लो में एयरबस 320 और वेग टर्बुलेंस मीडियम। अचानक से मुझे याद आया कि फ्रीक्वेंसी तो मैं भूल ही गया, तो हमने क्या बोला, करेक्शन। जैसे ही हमने करेक्शन बोला तो हमने जो लास्ट में लिखा था वो कट गया। अब जिस पैरामीटर को हम रिपीट करेंगे वहां के बाद से लिखा जाएगा। तो हमने बोला करेक्शन, विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट डेल्टा ऑन 118.5 एयरबस 320 वेग टर्बुलेंस मीडियम, currently positioned on stand 4 apron 3, request engine run up on idle power, duration 15 minutes, 15 मिनट का कार्यक्रम है विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट डेल्टा। होप दिस कॉल इज क्लियर टू यू, समझ में आया सबको यस सर। करेक्शन का यूज। नाउ in the response ATC might say Victor Tango Alpha Juliet Delta Mumbai ground engine ground run approved, रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन, जब आपका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो आप वापस रिपोर्ट करना, ठीक है। तो हम भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सबसे पहले उसने हमको कोई ना कोई अप्रूवल दिया तो पहले उसका रीडबैक देंगे, इंजन ग्राउंड रन अप्रूव्ड, विल रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन, ठीक है। हम लोग रिपोर्ट करेंगे कब, आफ्टर कंप्लीशन, या फिर इसके बदले में हम लोग बोल सकते हैं विल को विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट डेल्टा। समझ में आया सबको। यस नाउ जो हमारा पहला कॉल है, आप यहां देखो हमने बहुत अच्छे से W1 W2 W4 W3 को फॉलो किया, W1 W2 W3, फिर लास्ट में हमारा W1 W2 किधर गया, हमने क्यों नहीं फॉलो किया। देखो जब हम किसी स्टेशन से पहली बार इंटरेक्शन करते हैं, सपोज वन आई केम टू नो यू, सो दैट टाइम आई मस्ट बी सेइंग, आपका नाम 2-3 बार ले रहे होंगे, हेलो सूरज, हाउ आर यू, सूरज आई बिलोंग्स टू बेगूसराय इन बिहार, होप यू आर ऑल्सो डूइंग गुड, लाइक दिस। हम लोग जब इंटरेक्शन करते हैं स्टार्टिंग में तो क्या करते हैं कि जो नेम ऑफ द पर्सन है उसको हम लोग कंटिन्यूअसली 2-3 बार लेते हैं, और नेम ऑफ द पर्सन को बोला जाता है नाउन। आपने ग्रामर में पढ़ा ना, नाउन, नेम ऑफ पर्सन प्लेस और एनीथिंग इज नोन एज नाउन। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, संज्ञा। हो गया। सिमिलरली समथिंग इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, when we don't want to take the name continuously, then instead of that we are using he, she, it, like this, that, इस टाइप से यूज करते हैं ना। तो सेम जब हम किसी स्टेशन से कंटिन्यूअस गॉसिप में हैं तो बार बार उसका नाम थोड़ी लेंगे, फिर तो हम सीधे मुद्दा डिस्कस करते रहेंगे। सो फर्स्ट इंटरेक्शन आर प्रोफेशनल टॉक। प्रोफेशनल टॉक हम हमेशा चारों रूल को फॉलो करते हुए करेंगे, एंड वंस आवर कम्युनिकेशन इज एस्टेब्लिश्ड तो सिर्फ हम मुद्दे की बात करेंगे और लास्ट में अपना कॉल साइन बोलते जाएंगे। मुद्दे की बात, लास्ट में अपना कॉल साइन, इसको बोलते हैं कैजुअल गॉसिप, ठीक है, कैजुअल टॉक। तो पहला इंटरेक्शन हमेशा प्रोफेशनल, दूसरा कैजुअल हो सकता है, ठीक है। समझ में आया सबको। यस सर। पापा रोमा क्लियर टू यू।
Yes, sir. Sierra Oscar Hotel. Is that clear? Yeah, clear. या नहीं, affirm. Affirm, Now, yeah, clear. Sorry. ठीक है, ठीक है. Now, next question type is obtain, ठीक है, obtain engine startup. ठीक है. अब देखो, इंजन स्टार्ट हम लोग कब करते हैं? जब हमारे जहाज पे, अच्छा, सबसे बड़ी चीज, आप एक शेड्यूल फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हो जो कि मुंबई से नागपुर जाएगी, तो आपके जहाज पे जो पैसेंजर बैठेंगे उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस होगा, वो फिक्स टाइमिंग पे लोड होंगे, और आपके बोर्ड पे कुछ ना कुछ पैसेंजर रहेंगे, उसकी काउंटिंग होती है कि 10 पैसेंजर हैं कि 20 हैं कि 50 हैं कि 100 हैं, कितने हैं. सो इंजन स्टार्टअप का कॉल कैसे जाएगा? हैव अ लुक. ठीक है. चलो, अगर मैं बोलते बोलते सबसे पहले मेन चीज को समझो. मैं जो कुछ भी क्लास में बोल रहा हूं ना, डू मोर फोकस ऑन ऑडियो. ठीक है. क्योंकि ये आरटी का जो पूरा का पूरा प्रैक्टिस है, ये ऑडियो बेस्ड प्रैक्टिस है. ठीक है. आप लोग ज्यादा ध्यान दो मेरे ऑडियो पे, मेरे वर्डिंग्स के सुने हुए पे. मैं जो स्क्रीन पे थोड़ा बहुत लिखता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी हैंडराइटिंग सुंदर और अच्छी दिखे. बाय द वे, मैं बहुत अच्छा लिखता हूं, बट अगर कहीं पे मेरी हैंडराइटिंग बिगड़े और आपको कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर, ये जो आपने 3D में यहाँ पे एक फोटो बनाया, ये आपने क्या लिखने की कोशिश की. ठीक है. यू आर ऑलवेज फ्री. कंफ्यूज होके कुछ भी नहीं उतार लेना है. अगर मेरा लिखते लिखते हैंडराइटिंग बिगड़ता है, देन यू कैन आस्क मी कि सर यहाँ पे आपने क्या लिखा है, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार. क्लियर? अपने मन से कुछ भी समझ के नहीं लिखना है. चलो, यहाँ पे बताओ मैंने क्या लिखा है. VAJB के अल्टरनेट एरोड्रोम. वेरी गुड. अगर आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है. नहीं समझ में आया, और ज्यादा अच्छी बात है. तब आप तो पूछोगे ना कि सर यहाँ पे आपने क्या लिखा. ठीक है. तो कंफ्यूज होके नहीं रहना है. अगर डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो. हालांकि हैंडराइटिंग बिगड़ना इज नॉर्मल. ठीक है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स इंजन स्टार्टअप कॉल. सिनेरियो समझो पहले. इंजन स्टार्टअप हम कब लेंगे? जब हमारे सारे पैसेंजर हमारे बोर्ड पे बैठ गए, पूरा सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हो गया. नाउ वी आर रेडी फॉर डिपार्चर, सो वी कैन आस्क फॉर इंजन स्टार्टअप परमिशन. ठीक है. हमारे एयरक्राफ्ट का जब पुशबैक हो जाता है, तब हम इंजन स्टार्ट का परमिशन मांगते हैं. ठीक है. तो ये कॉल कैसे जाएगा? हैव अ लुक. आप सब इसका नोट बना सकते हो. Mumbai ground, Victor Tango Alpha Juliet Delta on 121 decimal liner, Airbus 320, Mumbai to Nagpur under IFR, with turbulence medium, current position, apron 3, stand 5, security check completed, passenger on board 180, aircraft ready for departure, request permission for engine startup. Victor Tango Alpha Juliet Delta. I am saying it again. I have called Mumbai ground that we are Alpha Juliet Delta using the frequency 121 decimal liner. We are operating an aircraft which is Airbus 320. Our sector is Mumbai to Nagpur under IFR. Our wake turbulence is medium, currently positioned on apron 3, stand 5. Security check completed. Security check completed. SCC. Passenger on board. POB. Passenger on board 180. Aircraft ready for departure. हम जहाज ले जाने के लिए तैयार हैं. Request permission for engine startup.
इंजन स्टार्ट करने का परमिशन दीजिए। विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट डेल्टा। क्लियर फॉर ऑल? यस सर। इसके अलावा कुछ आपने और नोटिस किया कि जब मैं आंसर राइट कर रहा हूं एट द सेम टाइम मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने और लिखने के बीच में गैप नहीं है, मेरे बोलने और लिखने के बीच में टाइम डिफरेंस नहीं है। तो जब आप लिखते के साथ साथ बोलोगे आपका रेट ऑफ स्पीच कम हो जाएगा, ठीक है? और यही आपको प्रैक्टिस डालनी है। आप लिखो और बोलो साथ साथ में, ना ही पहले लिखो और ना ही पहले बोलो, दोनों चीज साथ में करो। मैं जो करता हूं आप ध्यान से देखना, साथ ही साथ लिखता हूं और साथ ही साथ बोलता हूं, यही प्रैक्टिस आपको करनी है। तभी आप एग्जाम में एक बार में अच्छे से कॉल दे पाओगे, ठीक है? और ये बहुत छोटी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है? नाउ ATC must be given reply like this: Victor Tango Alpha Juliet Delta, Mumbai ground, engine startup approved, report when, ठीक है? report when ready for taxi. In the response we will say the same thing. इंजन स्टार्टअप, स्टार्टअप का शॉर्ट फॉर्म है S/U, आप यूज कर सकते हो। इंजन स्टार्टअप अप्रूव्ड, विल्को विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट डेल्टा। क्यों? यहां पे इसने कहा कि आप तब मुझे बताना जब आप टैक्सी के लिए रेडी हो जाओगे। जब रेडी हो जाऊंगा तो बताऊंगा, विल्को। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। affirm पक्का? एवरीवन क्लियर? affirm affirm, चलो, अल्फा जूलियट डेल्टा, उधर से रिस्पांस नहीं आया। अफर्म सर। ओके, आ गया क्लियर सर। ठीक है, ये तो मैं अभी स्क्रीन देख रहा था तब मुझे पता चल गया कौन कौन से स्टेशन ने रिस्पांस दिया, बट अगर मैं स्क्रीन देखूंगा ही नहीं तब, तो जब आप बोलते हो ना अफर्म, तो उसके पीछे अपना कॉल साइन बोला करो, अफर्म विक्टर टैंगो सियरा ऑस्कर होटल, तभी तो मुझे पता चलेगा कि ये अफर्मेशन किधर से आया है, ठीक है? और इससे आपकी भी प्रैक्टिस बढ़ेगी। एग्जाम में कुछ भी डिस्कशन होगा, आप उसका आंसर करने के बाद तुरंत अपना कॉल साइन बोलोगे, ठीक है? तो कुछ भी बोलो, लास्ट में अपना कॉल साइन जरूर बोलो, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन इज ऑब्टेन टैक्सी क्लियरेंस, और ये आज का लास्ट है। ये मैं आपको 2-3 आंसर टाइप लिखने के लिए समझा रहा हूं, ठीक है? बाद में हम लोग इस पे डीप डिस्कशन करके आगे बढ़ेंगे ही। आज बस आप ये देखो कि आंसर लिखते कैसे हैं, किस फॉर्मेट में लिखते हैं, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग में, आप आज बस वो समझो बेसिकली, ठीक है? नाउ यहां पे हमने मांगा टैक्सी क्लियरेंस। इस केस में भी हमारा इंजन ऑन रहेगा, हमारा सेक्टर कुछ ना कुछ है, और हमारे एयरक्राफ्ट में वीआईपी है, तो इस चीज को हम कंसीडर करेंगे। वीआईपी का स्टिल इंडिया में प्रोटोकॉल एंड वीआईपी कल्चर इज वीआईपी आर ऑन प्रायोरिटी। अगर कहीं वीआईपी मूवमेंट होता है तो पूरा का पूरा रोड जाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पहले मूव करवाया जाएगा और आपको बाद में छोड़ेंगे। तो वीआईपी अगर ऑन बोर्ड है तो हमको सबसे पहले डिपार्चर चाहिए भाई, हम लाइन में नहीं लगेंगे, हम सीक्वेंसिंग में नहीं आएंगे। क्यों? सपोज आपके एयरक्राफ्ट में यूएस का प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठा है, आपने अपने एयरक्राफ्ट पे उसको बोर्ड करवाया और रनवे पर जाने के लिए रास्ते में 5 एरोप्लेन है। क्या पता उसके पास, एक तो उन लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, और जैसे जैसे आपका डिजिग्नेशन बढ़ेगा आपका टाइम और ज्यादा कीमती हो जाएगा। आज से 2 साल तक पहले मैं फील्ड में ऐसे ही मतलब खाली टाइम बहुत रहता था अपने पास, सब लोग कभी भी कुछ भी बात करे या फिर कोई भी इंटरेक्शन हो, आई वॉज ऑलवेज अवेलेबल। बट नाउ आई एम फेसिंग द टाइम कॉन्स्टेंट सिचुएशन, टाइम होता ही नहीं है। आप अगर दिन में मेरे से कुछ बात करते हो, आई वॉज टू मच बिजी,
recent 2 days we had an interaction with Sierra Romeo Juliet. मैं उस टाइम पे इतना बिजी था, मैं आपको बता नहीं सकता. स्टिल आई फाइंड आउट द टाइम टू गिव द रिस्पॉन्स. ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे आपकी डिजिग्नेशन बढ़ेगी, आपका प्रोफेशनली आपका कैरियर हाई होता जाएगा, टाइम आपका इंपॉर्टेंट होता रहेगा. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. और फिजिकली इफ समवन नो मी, इफ समवन हैड ऑब्जर्व्ड मी फिजिकली, यू कैन अंडरस्टैंड कि टाइम का इंपॉर्टेंस कितना होता है, खास करके प्रोफेशनल कैरियर में. तो यूएसए के प्रेसिडेंट को आपने नंबर में वेट करवाया, यानी टैक्सी करने में एप्रोन से रनवे तक जाने में आपने उसको आधा घंटा वेट करवाया. एक तो टाइम इंपॉर्टेंस. दूसरा, वो बोलेगा कि अच्छा बेटा, मैं जब इंडिया आया था तो आपने मुझे एप्रोन से रनवे पे ले जाने में 30 मिनट लगाया. कभी हमारे कंट्री आना, हमारे कंट्री में तो इस बीच में 100 एयरक्राफ्ट रहेंगे, आपको मैं 2 घंटे डिले करवाऊंगा. ठीक है, तो इस चीज से बचना है. क्यों? क्योंकि दे हैड कम फॉर स्पेशल पर्पस. आप उनको अपने बिजी शेड्यूल में नहीं फंसाते हो. ठीक है, सपोज कि आपके घर कोई गेस्ट आए और आपके घर में कुछ भी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो आप उसको टेम्पररी होल्ड कर देते हो कि छोड़ो बाद में करेंगे, गेस्ट की खातिरदारी पहले. सिमिलरली, इफ समवन इंपॉर्टेंट पर्सन इज ऑन बोर्ड, टेक देम ऑन प्रायोरिटी. ठीक है, तो हमारे आंसर में वो झलकना चाहिए कि हम प्रायोरिटी परमिशन मांग रहे हैं. कैसे? हैव अ लुक. मुंबई ग्राउंड Victor Tango Alpha Juliet Delta on 121.9er, Airbus 320, IFR Mumbai to Nagpur, wake turbulence medium, current पोजीशन ऑन. ठीक है, करंट पोजीशन के बदले आप चाहो तो प्रेजेंट पोजीशन भी लिख सकते हो. प्रेजेंट पोजीशन ऑन एप्रॉन 3 स्टैंड 4. Security check completed. Passenger on board 10. Aircraft ready for departure. अब आएगा मेन चीज, रिक्वेस्ट टैक्सी इंस्ट्रक्शन. टैक्सी के साथ हमेशा इंस्ट्रक्शन रखेंगे. रिक्वेस्ट टैक्सी इंस्ट्रक्शंस ऑन प्रायोरिटी. वह प्रायोरिटी भैया क्यों चाहिए प्रायोरिटी? वीआईपी ऑन बोर्ड विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट डेल्टा. देखो, आई एम एक्सप्लेनिंग वन मोर टाइम द आंसर टाइप. हमने बोला कि वी आर ऑपरेटिंग एन एयरक्राफ्ट विच इज आईएफआर फ्रॉम मुंबई टू नागपुर, वेक टर्बुलेंस इज मीडियम, प्रेजेंट पोजीशन इज एप्रॉन 3 स्टैंड 4, सिक्योरिटी चेक कंप्लीटेड, पैसेंजर ऑन बोर्ड 10. वीआईपी के साथ 200 पैसेंजर तो नहीं बिठाएंगे, पैसेंजर ऑन बोर्ड 10. एयरक्राफ्ट रेडी फॉर डिपार्चर, हम जाने के लिए तैयार हैं. तो रिक्वेस्ट टैक्सी इंस्ट्रक्शंस ऑन प्रायोरिटी, प्राथमिकता ही पे हमको दी जाए, बाकी सबको रोक दो. ठीक है, वीआईपी ऑन बोर्ड. क्यों? क्योंकि वीआईपी पैसेंजर इज ऑन बोर्ड. विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट डेल्टा. समझ में आया ये कॉल सबको? यस, नो, एनीथिंग? यस सर. Now, in the response, suppose ATC have told Victor Tango Alpha Juliet Delta. ठीक है, मुंबई ग्राउंड टैक्सी वाया टैक्सी वे अल्फा चार्ली एंड डेल्टा, होल्ड शॉर्ट. अभी देखो, जो मैंने डेफिनेशन पढ़ाया था अभी आपको याद आना चाहिए. होल्ड शॉर्ट रनवे 24. क्या बोला इसने? कि टैक्सी करो. ठीक है, बट टैक्सी वे अल्फा को फॉलो करो, चार्ली को फॉलो करो और डेल्टा को फॉलो करो. नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी दिस इज अप्रूवल और क्लियरेंस? बताओ.
taxi via taxiway Alpha, Charlie and Delta. Is this approval or is this a clearance? क्लियरेंस। क्लियरेंस, दिस इज क्लियरेंस। क्यों? क्योंकि आपको उसने कंडीशन भी दिया, टैक्सी करो, ऐसे नहीं मुंह उठा के दौड़ जाओ। कैसे? वाया अल्फा, चार्ली एंड डेल्टा, इसी तीनों टैक्सीवे को फॉलो करते हुए जाओ। और फिर उसने लिखा होल्ड शॉर्ट रनवे 24। इसका क्या मतलब हुआ कि रनवे होल्डिंग पॉइंट पे पहुंच के रुकना, रनवे होल्डिंग पॉइंट पे जाओ और रुको। होल्ड शॉर्ट, पहले रुको, शॉर्ट मतलब पीछे, तो होल्ड शॉर्ट रनवे 24 के होल्डिंग पॉइंट से पहले जाके रुको। क्यों रुको? क्लियरेंस मांगने के लिए कि आपका रनवे खाली है क्या। ठीक है, लाइक दिस। अंडरस्टूड? यस सर। नाउ इन द रिस्पॉन्स आप क्या करोगे? सबसे पहले आप रीड बैक दोगे। कैसे? ऐसे, विल टैक्सी वाया, हम टैक्सी करेंगे वाया टैक्सी वे अल्फा, चार्ली एंड डेल्टा। ठीक है, फिर आगे क्या बोला उसने? होल्ड शॉर्ट रनवे 24। तो आप चाहो तो पूरा बोल दो, विल होल्ड शॉर्ट रनवे 24, या फिर इसको आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो, विल होल्ड शॉर्ट, ठीक है, ऑन रनवे होल्डिंग पॉइंट, ठीक है, रनवे होल्डिंग पॉइंट रनवे 24। तो इतना लेंदी कौन बोलेगा? अगर किसी को शौक है तो बोलो। ठीक है, विल होल्ड शॉर्ट रनवे 24, या फिर इन दोनों के बदले डायरेक्ट बोलो, विल को विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट डेल्टा। क्लियर? समझ में आया सबको? हम सबसे पहले किसी भी टाइप के अप्रूवल का, किसी भी टाइप के पैरामीटर का, किसी भी टाइप के क्लियरेंस का रीड बैक देंगे कि अल्फा, चार्ली और डेल्टा ही ना, पक्का, मुकर मत जाना बाद में, लाइक दिस। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ आंसर। आई होप द आंसर राइटिंग फॉर्मेट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। अभी समझ में आया कि आंसर राइटिंग करते कैसे हैं? यस, नो, एनीथिंग? Affirm, sir. So, हाँ, so these are the certain things which you need to understand. Now, अभी आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे या बाद में कभी सोचोगे कि सर एक ने बोला विल होल्ड शॉर्ट रनवे 24, दूसरे ने पूरा लेंदी बोला, तीसरा तो ऐसा बच के निकल गया विल को। तो इन तीनों में ज्यादा अच्छा कौन सा है? आप लोग पूछ सकते हो ना कि सर इन तीनों में ज्यादा अच्छा कौन सा है? सारे के सारे अच्छे हैं, ठीक है, ऑल आर करेक्ट। किसी में भी आपको एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा, तीनों में इक्वल मार्क मिलेगा। चाहे आप विल को बोल लो या विल होल्ड शॉर्ट बोल लो या फिर रनवे होल्डिंग पॉइंट के टर्म में बोलो, जैसे बोलना है। ठीक है, और यहाँ पे एक मिस्टेक है मेरे से, विल होल्ड शॉर्ट होगा विल होल्ड शॉर्ट रनवे 24। ठीक है, इस वाले पोर्शन में विल होल्ड शॉर्ट रनवे 24। ठीक है, तो तीनों में से कुछ भी बोलो, तीनों एक्सेप्टेबल है, तीनों का इक्वल वैल्यू है। सो दिस वर द सर्टेन थिंग्स, ठीक है, व्हाट वी हैड टू सी, एंड नाउ दिस विल गो आफ्टर, दिस विल गो आफ्टर 17th ओनली आई गेस। तो 17 तक हम लोग वेट करेंगे एंड विल सी आफ्टर 17th व्हाट कैन बी डन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड कुछ दिन का गैप रहेगा ही बीच में। आप लोग पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करने की एक बार कोशिश करो। इफ यू कैन डू इट्स वेल एंड गुड, इफ यू कांट तो मैं पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस आपको शेयर करूंगा, उससे आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करो। ठीक है, लाइक मॉड्यूल इज इंपॉर्टेंट, अभी आरटी भी तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया, मैं आपको क्या ही बताऊं। टिल 2 अटेम्प्ट मुंबई एंड चेन्नई,
जब तक WPC के हाथ में है, आपकी फीस कम है और आपका एग्जाम पैटर्न इजी है, तो आप RT भी जी जान लगा के लग जाओ आंसर करने, सॉरी प्रैक्टिस करने में, क्योंकि DGC का मॉड्यूल तो बाद में भी वैसा ही चलेगा। RT पता नहीं DGC क्या सिलेबस लेके आ जाए, ठीक है। एंड आई थिंक वो रिटेन एग्जाम का सिलेबस लेके आने वाला है, MCQ टाइप, क्योंकि उसने फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो टाइम गैप दिया है और जो अटेम्प्ट का गैप दिया है, उससे कुछ अच्छा नहीं फील आ रहा है कि हो सकता है वो पहले सिंपल MCQ टाइप या मॉड्यूल टाइप का क्वेश्चन पेपर ले आए कि आप पहले एग्जाम दो 100 नंबर का या 50 नंबर का, और अभी जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पार्ट 1 का बोल बोल के आंसर लिखने वाला, इसको वो पार्ट 2 में ले जाएगा, ठीक है, और पार्ट 1 को बना देगा नॉलेज टेस्ट, वाइवा वाला सिनेरियो खत्म कर देगा। इस टाइप का मुझे फील आ रहा है बाय रीडिंग देयर सर्कुलर, बट डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर गोइंग टू ब्रिंग। तो RT भी इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए, तो आप लोग देख लो, आपको जो भी प्रायोरिटी पे लगे उस हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करो। एंड फॉर एनी डाउट, दो आई एम गोइंग टू होम, don't hesitate to ask any doubt, don't be shy to ask anything, either over WhatsApp or by text message, whatever is available with you. सुबह दोपहर शाम till 12 o'clock I am available with you always, ठीक है। तो कोई भी सा भी डाउट आए कहीं भी है मुझे बताओ। आपको अगर कुछ टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो ड्यूरिंग रिवीजन, यू कैन आस्क मी फॉर एक्स्ट्रा सेशन। आधे घंटे तो मैं फ्री रहूंगा ही, चाहे घर पे ही रहूं, तो देयर आई विल कवर योर लेफ्ट ओवर पोर्शंस, ठीक है। सो विल सी यू ऑन नेक्स्ट पॉसिबल डे, व्हाटएवर इज पॉसिबल, ठीक है। सो